like someone comes on the podcast, right? I tell them that think of this like a meet call, right? उससे ज्यादा कुछ नहीं, and this meet call is getting recorded. तभी मतलब so the thing is like if in podcasts people are not authentic, right? Then मतलब मेरे को मजा ऑथेंटिसिटी में ही आता है, राइट? लाइक जैसे आपका कुछ फ्रेमवर्क होगा या कुछ आप बताओगे, राइट? इट शुड बी योर्स, राइट? लाइक जेन्युइनली योर्स, एंड फिर डिटेल में जाके इंट्रिकेसीज में ऑल ऑफ दैट. करेक्ट. या सो सही. या गो ऑन. हाँ, नहीं हम लोग नॉर्मली कैसा है आप, हाँ, जैसे बात कर रहे हैं वही अगर बात कर रहे हैं और साइड में रिकॉर्डिंग मतलब मीटिंग का रिकॉर्ड ऑन रखा हुआ है, तो हाँ. बस ऐसे ही रखा तो वो थोड़ा नेचुरल या रहेगा. नेचुरल रहेगा यार. सो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, ठीक है? हाँ. सो कुमार, I met Kumar in Lonavala, and it was supposedly not where we should have, like it was not planned. It was very abrupt, so it was a meeting. It was basically offsite by GrowthX, and when I spoke to him, and when I sort of the conversation went in really, it went really detailed, and I got to know that he's a managing director of Bill Cloud, but on the top, matlab, over the entrepreneur, right? All the layers, I tried to explore like a little bit, but I wanted to do this especially so that I can explore like a little bit more, right? And इससे ये होगा ना कि I get to know your personality and how you have done like multiple businesses, because I've seen like on your LinkedIn you have changed a lot of careers, right? करेक्ट. And as like a young entrepreneur, I would really love to learn how much your experience from your experience, how much can I borrow, right? And it's करेक्ट. great, right? So we'll talk about, like, we'll have deeper questions about life, right? We'll have deeper questions about business. We'll have all of that. But for everyone's intro who is watching this, Kumar Majitia is the managing director of Bill Cloud. It's a fintech company, and I would, want to. So Kumar, let's start with this, right? I want to know what Bill Cloud does, right? So for everyone, it would give like a perspective, and how did you start that, right? That's the question. Okay, so Bill Cloud is a multi-channel collection, reconciliation, and settlement platform for large utilities. So anybody, any company that has more than 50,000 customers who are paying on a regular basis will typically need to open up multiple channels of payment. So some people prefer to pay by cash, checks. Some people want to pay on an app. Somebody wants to just, do a credit card kind of auto debit. So you have so many options, right? So many ways you can pay. And if you have 50,000 customers, you will find every kind that you need. And Right. so as an enterprise, you need to open up all of these channels. And then you end up doing integrations with all of them, right? And so what we decided was, we said we will integrate all of these ways to pay and offer one integration to the merchant. Got it. And merchant is typically like a large enterprise. Yeah, so a large B2C enterprise, usually biller, so a utility company, for example, a municipal corporation or an electricity board, or an NBFC or an internet or cable company. So anybody who has large number of customers, and who kind of pay on a monthly basis or maybe quarterly or yearly, whatever as the case. Right. And so I was exploring Bill Cloud, right, before this conversation, and जिसके बहुत सारे B2C customers है, I think for them you have also enabled, for them, I think customers can also pay without internet, right? Correct. I think through SMSs. How have you done that? Like, I wanted to sort of, get some perspective on that. या सो ये चीज हमने असम हाँ. में असम पावर के लिए किया था. Hmm. So what we did was, so when we went there, they said that हमारे रिमोटेस्ट एरियाज में तो हमारे लाइनमैन भी नहीं जाता कलेक्ट करने को. Hmm. मतलब वो बहुत दूर दराज के एरियाज हैं और वो 3-4 महीने में एक बार जाता है, एक साथ में पैसा लेके आता है. तो अगर कस्टमर्स वहां पर कैसे पे करेंगे, वहां तो इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है. Hmm. तो मैंने बोला कि वहां पर रिचार्ज का टपरी है क्या. बोले Hmm. हाँ. तो मैंने बोला ठीक है, फिर हम रिचार्ज के टपरी पे आपका कलेक्शन कर देंगे. Hmm. So what we did was, got in touch with एयरसेल के डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड वी सेड दैट आपका जहाँ जहाँ भी टपरी है वहाँ पर हम आसाम पावर का बिल्स कलेक्ट करेंगे और आपके लोगों को वॉलेट्स दे देंगे. आप लोग डिजिटली पैसा ट्रांसफर कर दो, लेकिन आप लोग कैश लेके मेरे यहाँ एसएमएस से ट्रांजैक्शन कर दो, हम उसकी रिसीट जनरेट कर देंगे सिस्टम. Hmm. Got एंड it. they would make $10 on every transaction. Got it. Got it. But like how hard it is operationally, right? So when you selling it to like a
organization of that size, right? Let's say Assam Electricity Board, right? Correct. And then also आप collect भी कर रहे हो distributors को, Correct. फिर आप वहाँ पे customers में awareness भी है. So I don't think that would be your thing, but every distributor would do that. Correct. So how hard it is operationally to do all of this, right? You'll be surprised. It's not very hard actually. Okay. First of all, we were solving a problem that nobody was solving. Hmm. So immediately they sit up and listen. है ना? Okay. They were like, अच्छा तू कर देगा जो हम इतने सालों से नहीं कर पाए, ठीक है करो. Right. तो Yeah. वो LOI तुरंत दे देते हैं क्योंकि आप अगर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है Hmm. है ना. आज भी यूपीआई आप एनपीसीआई चले जाओगे तो बोलेगा दूर दराज गांव में यूपीआई चालू कराओ, डू यू हैव एन आइडिया, दे विल लिसन टू यू, दे विल गो विथ यू आल्सो, दे विल Hmm. सपोर्ट यू. तो सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि इतनी बड़ी कंपनी आपसे बात क्यों करेगी. तो आप ऐसी बात कर रहे हो जो कोई नहीं करता तो वो Hmm. करेंगे. सही बात है. फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूटर. तो अब डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगता है कि नहीं, हाँ मतलब अगर आपको एक मतलब आपको करना क्या है, पहले तो टपरी पे जाना है ना कि तू आसाम पावर का बिल लेगा क्या. हाँ. तो बोलेगा हाँ लूंगा, क्यों नहीं लूंगा. तू रिचार्ज किधर से लेता है, उसको बुला. हाँ. तो अब छोटी जगह है तो वो बुला लेता है उसको, तो वो तुरंत भाग के आ जाता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, अच्छा. नाइस. है ना. फिर उसको बोला भाई तू इसको रिचार्ज करता है, तू कितनी जगहों में रिचार्ज करता है. तो बोला साहब 200-250 टपरी है अपना, हाँ. उधर मैं करता हूँ. तो तू किधर से रिचार्ज लेता है. तो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, उसको ओ. फोन कर. तो फिर उसको फोन करता है ना. तो इतना हार्ड नहीं है. अगर आप मतलब छोटी जगह में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ आप तो काम ही काम है. कोई नहीं जाता वहाँ, डर लगता है. लोग जाते नहीं. पहले तो डर लगता था, अब तो डर नहीं लगता शायद. लेकिन दूर दराज एरियाज में जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ अगर आप पहुंच गए तो लोग वेलकम करते हैं आपको, बहुत काम देते हैं. वहाँ कोई जाना नहीं चाहता. आई थिंक मतलब इवन लाइक इन सर्टेन मतलब जो इन्सिडेंसेस हुए राइट लाइक ट्राइबल्स एंड सिटीज लाइक रियली मर्ज्ड इन असम. तो वहाँ पे आई थिंक डेवलपमेंट का स्कोप तो बहुत है एंड वहाँ की हाँ. गवर्नमेंट इज ऑलरेडी लाइक इन डीपर लॉसेस राइट. एंड इफ यू करेक्ट. सॉल्व like some problem for them and it saves for them, they'll basically welcome you, right? It's And very where would you? expensive to go हाँ. there and do anything. So people, as it is, they feel like नहीं जाना है. मतलब मैं त्रिपुरा गया एक बार, मेघालय गया हूँ. तो त्रिपुरा सेम इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेघालय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. एंड सो द थिंग इज आप जाके आके 25,000 रुपया खर्चा हो जाता है. समझ गए. जस्ट टू गो स्टे देयर फॉर 2-3 days एंड कम बैक इज अ बिग एक्सपेंस. सो उधर से ही वो शुरू होता है. अगर आपके पास Yeah. थोड़ा पैसा है, वेर यू कैन गो एंड start talking to people. No, there's a lot of business over there. Got it. And as a general pattern, what I can see is that तो आप एक तगड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हो राइट. एंड फॉर अ एरिया दैट इज सो रिमोट वेयर नो वन वुड गो, वहां पे चले गए. सो दिस क्लाइंट रिटेन्स विथ यू फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम राइट बिकॉज यू बिल्ड कनेक्शंस, यू टेक दैट पेन राइट. वो इनिशियल लेवल का, बट इन द लेटर लेवल आई थिंक इट सस्टेन्स राइट. एंड सॉफ्टवेयर डज मोस्ट ऑफ द जॉब राइट. Correct. So that's great. But so, okay, typically this podcast is also, I have not sort of rebranded it, etc. But I was discussing with you the other day, right? I ran this idea through a couple of other people who, can advise me. तो मैंने आपको बताया था, this podcast is to have, 100 conversations with 100 founders or 100 business people, right? So that they can tell their perspective कि business जो होता है ना, वो वैसा नहीं होता जो हम टीवी पे देखते हैं और हाँ. यूट्यूब पे देखते हैं जिसकी एड सबसे ज्यादा बचती है राइट. जैसे क्रेड हो गया, देयर आर अदर बिजनेसेस हु रन ऑन वैल्यूएशन राइट. दे आर गुड बिजनेसेस राइट फॉर देम राइट. बट देयर आर मल्टीपल वेज टू स्टार्ट अ बिजनेस. आई वुड नॉट इवन से टू बिकॉज देयर आर इंट्रिकेट डिटेल्स इन ईच ऑफ देम राइट. तो मतलब आई जस्ट वांट टू गिव एवरीवन और पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस अ सेंस ऑफ कि कैसे कैसे बिजनेस किया जा सकता है. ठीक है. तो व्हाट कुड यू शेयर एंड हाउ डिड यू स्टार्ट दिस राइट बिल क्लाउड, and tell more about Bill Cloud so that people understand it deeply and also understand how did you start it at the first place, plus what was your mindset at that point, right? Yeah. So what is interesting is that I came from a government e-governance background. So in 2006, I co-founded a company called Probity Soft. Okay, and before that, I was in the US. I was working. So I co-founded Probity Soft, and we got into municipal e-governance. Right. अब म्यूनिसिपल ई गवर्नेंस करते करते हमको समझ में आ गया कि there are there is a lot of opportunity in the government space. So it's a great customer, but in terms of collections, na, when you want to collect money from them, it's a very It's difficult hard. customer. So
you run into major cash flow issues with the government. Now, Okay. while we were working for these guys, we realized that there were some businesses. So we were integrating BillDesk at that time for Right. online payments. Right. And we saw that BillDesk अपना MDR तो काट के फिर सेटल करता था, अच्छा, एमडीआर है ना? क्या होता है? खुद का पैसा, खुद का जो ट्रांजैक्शन फी होता है, हम्म। तो वो जो ट्रांजैक्शन होते जाते हैं ना, वैसे वो काटते जाता है हम्म। और बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में सेटल करता है। अच्छा। तो अगर मैं कस्टमर 100 रुपया भरता है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 1 रुपया कट के 99 रुपया मिलता है, हम्म। समझ गए? तो वो हर ट्रांजैक्शन पे अपना पैसा काट लेता है, वो कभी खड़ा नहीं रहता मेरा पैसा दे दो, अच्छा। हम्म। है ना? क्यों? क्योंकि वो पैसे के वैल्यू चेन में खुद आ गया, बीच में पैसा उसके या थ्रू आ रहा था तो उसने अपना काट लिया। और वो आएगा ही आएगा कैसे भी, राइट? हाँ, सो तो वो तो इट्स आना ही, बेसिकली उसको या उसके थ्रू या ही आना है, तो उसके थ्रू आया करेक्ट। तो उसने अपना ले लिया और बाकी का दे दिया आगे कि भाई मैंने मेरा राइट। काट लिया, है ना? बेसिकली तो गवर्नमेंट महीने इज के द एंड में सोर्स, खाली गवर्नमेंट इनवॉइस इज द दिखाई मीडियम। या मतलब सोर्स और मीडियम एक हो गया, राइट? एक लेवल पे, है ना? तो महीने के एंड में सिर्फ इनवॉइस देता था, उसको कलेक्शन हाँ। करने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा तो ले चुका था वो पूरा, राइट। है ना? तो मैंने मेरे को फाउंडर को बोला, जो पार्टनर था मेरा, उसको बोला कि यार मेरे को ये धंधा अच्छा लगता है, कैसा ये अपना पैसा पहले ही निकाल लेता है, या और हम लोग यार 18-18 महीने 20-20 महीने काम होने के या बाद भी पैसा नहीं निकल रहा है और दिक्कत करेक्ट। होती है। करेक्ट। सो ही सेड ठीक है, तो तू ट्राई, हाथ मार थोड़ा। तो आई हाँ। टुक अ फ्यू पीपल फ्रॉम आवर टीम एंड क्रिएटेड अ सेपरेट टीम, एंड राइट। दैट्स हाउ बिल क्लाउड स्टार्टेड. ओके। ओके। So we built this solution. We realized that there were some key pain points that we were addressing. डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कुछ पेन पॉइंट्स होते हैं, उसको हमने एड्रेस किया, और ये मल्टीपल इंटीग्रेशन, जैसा मैंने बोल दिया कि एक ही इंटीग्रेशन में उनको मल्टीपल चैनल्स मिल जाते थे, तो इससे बिल क्लाउड की शुरुआत हुई. पर इससे गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना तो इजी हो गया, राइट? हाँ मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल, या एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बहुत बहुत इजी हो ज़्यादा. गया बिकॉज सारे कस्टमर्स के पास उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट स्टैक्स में एक पेमेंट सॉल्यूशन और जोड़ दिया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर है ना? अगर मतलब आप सोचो कि आज जो हमारा पहला रोल आउट था पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहां पर 85% लोग आज डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं. सिर्फ 15% लोग काउंटर पे जाके कैश या चेक दे रहे हैं आज, टुडे। आज. पहले अलग था क्या? पहले 5% दे रहे थे. अच्छा। हम्म। So from 5% it's come to 85%. There are still people हम्म। who pay cash, and that usually in the slum areas. But that too now, if with UPI, even that will go completely, because या even they pay through UPI now. राइट, एंड इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। मतलब आपने एग्जिस्टिंग चीज को कंबाइन करके एज अ स्टैक बेचना स्टार्ट किया, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई Correct. थिंक यू, तो पिछली बार व्हेन यू सेड, राइट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, देयर आर टू डिफरेंसेस। मैं सोचने लगा था, ठीक है, मैंने कहा कि यार मैं इतना बेवकूफी वाला क्वेश्चन पूछ लूंगा, क्या ही सोचेंगे, पॉडकास्ट पे बुला के फिर मैं पूछता हूँ ये बात। तो लाइक जस्ट इन जनरल एक्सप्लेन, तो आई अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट, राइट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बट जस्ट एक्सप्लेन दैट सो दैट मतलब आजकल तो मोस्टली व्हाट पीपल सी ऑन ट्विटर, राइट, एंड बिल्ड 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 वाला जो कल्चर है इज centered around software as a service, right? But I would want to understand what is service as a software, right? Yeah. So we normally call ourselves service as a software, and even though we use SaaS, and it's funny. Uh, See, there are certain products. It all depends on the size of the problem you are solving. अगर आप एक छोटा प्रॉब्लम बहुत लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो यू बिकम अ SaaS प्लेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेयर. छोटा लेकिन प्रॉब्लम बहुत अगर लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हो, राइट, बेसिकली। बहुत लोगों के लिए, हाँ, अगर एक ही प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम एक सॉल्व करते हो ना, तो आपको स्केल करना आसान हो जाता है. लेकिन इसमें एक इश्यू होता है, और वो इश्यू ये है कि फिर कोई और भी वही आपको देखकर कर बहुत सकते सारे हैं। लोग वही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हम्म। और फिर because it is easy to acquire हम्म। or get acquired, uh, it's easy for the customer to move from one service provider to another. समझ गया। यस, है यस। ना? जितना आसान है किसी को अक्वायर करना, उतना ही आसान है उसको खो देना. और वो कितना, उतना ही आसान है किसी और को एक्वायर करना। रिटेंशन और नहीं फिर है, एक्विजिशन है, वही चीज राइट? किसी और के लिए भी काम आती करेक्ट। है ना? तो करेक्ट। एक बार आप इस घोड़े पे चढ़ गए ना, तो आपको फिर आप रुक नहीं सकते, आपको दौड़ते ही रहना है. इट्स अ पेनफुल जर्नी, राइट? लाइक आई थिंक इट्स वेरी टायरिंग।
businesses are unless you generally tiring. process it out and then you Yeah. put people in place and say यार अभी तुम Yeah. करो, मैं खाली बैठ के देख रहा हूँ, मैं I'll tell you अभी नेक्स्ट क्या आएगा, Hmm. है ना? अगर आप वहाँ उस चक्कर में से आप निकल गए तो आप तो फ्री हो गए, लेकिन जो चक्कर में अंदर घुसा हुआ है वो तो पिस रहा है। Painful. Yeah, yeah, yeah. Yeah. समझ गए? क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको पता चल जाएगा, मार्जिन प्रेशर्स आने लग जाएंगे, सम न्यू एंट्रेंट विल कम विद अ लॉट ऑफ मनी, ही विल से एवरीथिंग Hmm. इज फ्री, देन योर कस्टमर्स आस्क यू आप पैसा क्यों ले रहे हो, है ना? सब Hmm. फ्री में तो हो रहा है। फिर धीरे धीरे सब फ्री 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 करके जो बेचारा जिसको कमाना है वो तो कमा नहीं पाता, और जो Hmm. गंवाने आते हैं वो सब गंवा गंवा के बैठ जाते हैं। इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हो आप सीधा सीधा, राइट? हाँ लाइक, मतलब ये जो भी आ रहा है कोई तो हाँ, गंवा या रहा या है टोटली टोटली, ना? लाइक समवन हैज टू लूज, राइट? मतलब या अगर कहीं पे कुछ फ्री पहुंच रहा फाउंडर्स है, यूज टाइम, नो नो, they could टोटली be doing टोटली, something more या, productive, right? सॉल्विंग सम लाइक बिगर इश्यूज। और मतलब देखो, देर आर स्पेस फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? लाइक SaaS का भी स्पेस है, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर का भी स्पेस है, राइट? बट आई थिंक एज अ फाउंडर व्हेन यू मेक अ डिसीजन, राइट, कि कहाँ जाना है, मतलब कौन सी स्पेस को एक्सप्लोर करना है, आई थिंक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एट अ ह्यूज स्केल जो ज्यादा लोग नहीं करेंगे, राइट, उसको एग्जिस्टिंग सर्विस से कैसे सॉल्व किया जाए, पैकेज डिफरेंटली, राइट? तो एक बात मैं आपको समझा दूं, जो हाँ, काम यस। कोई नहीं कर रहा ना हम्म। वो आप आसानी से कर सकते हैं, हम्म। लेकिन एक बात समझ जाना, अगर कोई नहीं कर रहा है ना तो वो करने लायक नहीं है। हम्म। राइट। समझ गए? ये आगे जाके आपको रास्ते में आपकी लर्निंग आ जाएगी कि कोई नहीं कर रहा था तो इसकी वजह थी कि कोई नहीं कर रहा था। ये काम करने लायक नहीं था। करने लायक हम्म। नहीं है मतलब क्या? हम्म। करने लायक नहीं है मतलब ये काम स्केल नहीं करेगा। Bill Cloud is फिर scaling, right? Like, I think if, let's say, you get all talk the about government. we'll Okay. talk about how the scaling Yeah. thing Yeah. happens. Yeah. So can you scale what we did for Aircel and Assam Power? It's difficult. Crazy operational costs, capital. It's not worth it. Okay. दो जो आप आपको नॉर्थ ईस्ट में काम तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वो काम आप बाकी इंडिया में रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। सही बात है। इट्स नॉट सिमिलर मॉडल, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से कुछ अब कुछ करना पूरी पड़ेगा। दुनिया ही अलग है वो, और यहाँ पूरी दुनिया अलग है, तो यहाँ या। अलग लेवल पे ऑपरेट करती है। वहाँ कुछ आप इम्प्लीमेंट करके आ गए और आप सोचोगे कि वो यहाँ यहाँ उसके 100 वेंडर होंगे जो आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। सही बात है। या। इट्स जस्ट दैट ये लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ ज्यादा कमाने को नहीं मिल रहा है या व्हाटएवर इज द रीजन, हम्म। एंड सो आप चले गए, आपको तो मिल गया काम, हम्म। है ना? अब आप सो यू लर्न कि भाई ये तो करने लायक था, लेकिन फिर मैं यहाँ तक ही सीमित रह जाता, और वो बुरा नहीं है। अगर आपने अपना निश ढूंढ लिया है और आप वहां पर काम करे जा रहे हो तो आपको और ज्यादा काम मिलेगा, रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे। कुछ लोग जो अब आपके पियर्स हैं ऊपर जाके वो चेयरमैन बन जाएगा कभी, है ना, एपीडीसीएल का, एंड देन यू नो या। द चेयरमैन फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, एंड यू कैन डू अ लॉट मोर वर्क फॉर देम। Kumar sir, I think relatively, right, what business you are in, it's very peaceful. I would want to do a business like that rather being like always on a horse, riding for valuation game खेलने का, right? Because I think you are playing the profitability game, which is like totally different, right? एब्सोल्युटली। सो हियर्स व्हाट हैपेंस, Hmm. जब आप एक फुल सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप एक बुटीक बन जाते हो। Correct. यू लाइक अ बुटीक, है ना? आपके पास कुछ ऐसा है जो कुछ ही लोगों को चाहिए, बहुत सारे Correct. लोगों को नहीं चाहिए, Correct. और ये लोग आपको बहुत ज्यादा दूसरों को देने से आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस लेवल का Correct. सर्विस दे रहे हो उसमें आपको ज्यादा पैसा मिलता है ना? Right. Right. So now you have a few customers for whom you are a full service provider, and you make in terms of profitability, you are making way more money in terms of operations than you would make on any of the other guys. क्योंकि आपका कोर धंधा वो है, राइट? यू हैव मेड चैनल्स टू प्रोटेक्ट दैट एज अ बिजनेस, क्योंकि लेट्स से इफ आई गो टू TCS, नॉट बिल क्लाउड, their core job is not that, right? At one point they're going to be lethargic with that, right? But let's say with you, right, bill cloud, you'll have a stack and you'll basically make layers to ensure कि जो customer को चाहिए उसके simultaneous layers भी add करते रहो, right? And बिल्कुल, all the team is और inclined हम लोग towards that. रिस्पॉन्सिव भी ज्यादा होते हैं। Yeah. हम जैसे हमारे 5 कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, वैसे ही अगर 50,000 होते तो हम वैसे थोड़ी ट्रीट करते। नहीं, सही बात है। आई थिंक कैप लगा के भी फायदा है, राइट? सो आई थिंक व्हाट आई डिराइव फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, राइट, there is a pattern. So let's say you solve like a huge problem, become service as a software, right? करेक्ट। And कम लोगों को कुछ सॉल्व करके दो, डीपर रिलेशनशिप्स बनाओ, पीसफुल जिंदगी जियो, हमेशा घोड़े पे मत बैठ के वैल्यूएशन की तरफ मत जाओ,
and you will have like a peaceful, nice life, right? And there is no definition of success, right? So at this point, I think जब आपने नहीं, बिजनेस चूज किया. हर हाँ. स्टेज पे वो सक्सेस ही होता है, लेकिन आई Correct. टेल यू समथिंग. Yeah. See, what happens is you will read as soon as you hit this, no, you will redefine your success. Correct. So depending on which stage, हर entrepreneurs का ना अपना खुद का स्टेज होता है एक, Hmm. और वो एक स्टेज में से निकल के दूसरे स्टेज पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है, फिर चौथे पे जाता है, फिर वो सब में से मुक्ति पाके निकल जाता है, बोलता है ये सब मोह माया है. Right. समझ गए? So there are stages in which you enter, and in that stage ना, that sounds like a good story. Correct. बट यही स्टोरी अगर आप नेक्स्ट स्टेज के एंटरप्रेन्योर को यही सुनाओगे ना पॉडकास्ट, तो वो सुन के ऐसे कान बंद कर देगा, अरे नहीं इनको पता नहीं है, इनको अक्ल नहीं है कि क्या बोल रहे हैं. Yeah. Yeah. समझ गए? और बिकॉज ये जहां हमने यही लिमिटेड लगा दिया ना, उनको वो करना ही नहीं चीज, राइट? लाइक दे वुड नॉट इवन थिंक मोर, राइट? वो बोलेंगे मैं लिमिट क्यों हो जाऊं, राइट? हाँ, मतलब आप क्या कर रहे हो यार, आप या मतलब या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना है तो मत करो, मतलब नौकरी करो ना, कौन करेक्ट गवर्नमेंट जॉब करो, करेक्ट है करेक्ट ना? शांति ही चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब कर लो यार, या शांति से बैठ या जाओ. या तो so it is, so depending on which stage you are, na, and there is growth at each stage. So as soon as you hit a stage, you start finding faults in that model, and when you say ये अच्छा है लेकिन ये ऐसे बुरा है, तो अगर because आप see walls, when you create walls, no, they secure you but they restrict you. क्या बोल दिया यार, क्या ही बोल दिया, एपिक. है या ना? सो व्हाट या हैपेंस इज, इफ यू, आपको डर लग रहा है तो आप दीवारें खड़ी कर देते हो, बोलते यार ये मेरा पीसफुल अब हो गया. करेक्ट. थोड़े दिनों के बाद वो दीवारों में आपका दम घुटने लगता है, राइट फिर आप उसको और बड़ा करते हो, फिर उसको और राइट बड़ा करते हो, और धीरे धीरे राइट. आप में और ज्यादा हिम्मत आती है, आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप और बड़ा गेम खेलना चाहते हो. समझ गए? और ऐसे ऐसे करके आप फिर उस लेवल पे पहुंच पहुंच जाते हो कि सो सो हाउ डू यू, it's all about how do you define how much value you are adding, and whether you feel like adding more value or not, or if you इट्स think ऑलवेज भाई, दैट, राइट? हाँ मतलब हमेशा कुछ ना कुछ एक जंक्चर पे हो आप, जहाँ पे हाँ आप यहाँ पे पॉज ले सकते हो, राइट? यू कैन कम हाँ, बैक, बिल्कुल. रिट्रैक्ट, राइट? हर थोड़ा एवरी सेटिंग, जंक्चर, राइट? थोड़ा या देख ले, थोड़ा यू नो, जस्ट एटलीस्ट यू नीड a way to kind of ring the bell and say I reached, I've arrived here, या या है और ना? वो आपकी है डेफिनेशन, मतलब आपसे वो कोई छीन नहीं सकता, राइट? दैट इज यू व्हेन यू रिंग दैट बेल, राइट? इट Absolutely. डिपेंड्स, राइट? मतलब फॉर मी आई थिंक इट कुड बी कि यहीं पे ब्रेक लेके वॉट एवर आई एम मेकिंग इज फाइन फॉर द एंटायर लाइफ, राइट? एंड आई जस्ट कीप डूइंग दिस रिपीटेडली, राइट? Absolutely. या Absolutely. And there are people who do it. I know people who do that हम्म all their life. हम्म Okay, I've known people, हमारे previous generation में, like my dad was a businessman, right? He had a set of dealers to whom he used to supply, and he was a trader. And राइट these were people he had never met, राइट है ना? These were people he had never met, and he wanted to, but he never thought that he needed to grow more or do more, or उन्हीं लोगों से उनको रेगुलरली ऑर्डर्स आते रहते थे, फोन पे बात करते रहते थे, शायद कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन उनको मतलब दैट वाज गुड बिजनेस, हाँ, and गुड he feel, बिजनेस. हाँ, I'm या doing a good job. totally totally. And I think for like जो अपने से आई थिंक यूजुअल ट्रेडर बिजनेसेस, राइट? हाँ. जैसे कोई जूता बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, राइट? लाइक सम मैन्युफैक्चरर्स, अदर पीपल, दे हैव लाइक द सेम सेट ऑफ पीपल, राइट, विद देम. अगर स्पेशली आप होलसेलर हो, तो आप जिसको होलसेलर नहीं, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपके लिए सेट ऑफ पीपल रिमेन द सेम, राइट? यहाँ और यहाँ पे यू Absolutely. जस्ट कीप एडिंग लाइक अ लिटिल बिट, राइट? एक साल में हो सकता है 3 लोग आ गए, ऑर्डर दे रहे हैं, राइट? अब यहाँ से थोड़ा और ले लोगे, एंड यू कीप बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद दोस पीपल, एंड दैट्स अ गुड प्लेस टू बी इन, राइट? देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. It's a आपकी wonderful पर्सनालिटी place फिट to होती be. है. हाँ See, I'll tell you, हाँ. I love the fact that our customers can't function without us. It makes me feel wanted. या So, and it makes me feel important, and we serve them well, and they are, they are happy with us. They are grateful. You can tell, that they really appreciate us, what we do for them. We take a lot of pains to make sure that their business keeps running and that they are free to grow, from where they are. या So we give them that freedom, so they don't have to worry about this part of the business. करेक्ट.
वो पूरा मतलब उनको पता है यार कुछ नहीं कुमार को, उनके यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, तो वो लोग हमको ही फोन करते हैं, पूरा ट्रेनिंग उनके बिजनेस का ट्रेनिंग हम कराते हैं, वो ये एस्पेक्ट का पूरा कि पैसा या कहाँ से आता है, कौन देता है, कौन फ्रेंचाइजी क्या लेता है, ये कौन लेता है, ये है ना, या वो पूरा हम उनको बताते हैं। तो उनको पता है कि एक रेसिड्यू है जहाँ पर हमारा पूरा बिजनेस इनको पता है। और हम्म जब भी कोई नया सीएफओ नया आ गया तो कुमार के साथ बढ़ा दो इसको, तो राइट सीख जाएगा पूरा अपना बिजनेस। Yeah, so like they are comfortable in one area at least, right? And that's what a business wants, right? As a customer, for you, I think it will be a good. मैं वही कह रहा था आपको स्टार्टिंग में कि आपने कुछ सॉल्व करा, नाउ यू आर इंश्योरिंग अ टीसीएस वुडंट बी एबल टू डू दिस एट एनी कॉस्ट, राइट? आप लोग तो उनके लिए ट्रेन कर रहे हो, राइट? सो दिस इज वेरी कस्टम, लाइक इट्स एक्सट्रीमली कस्टम, राइट? एब्सोल्युटली। Yeah. But how do you figure out problems like this? Did this happen like just because you were like in e-governance? या फिर are there more ways or structured ways to, go about finding these problems? So first of all, problems are visible only in the marketplace. जहाँ आप पे घर में आप बैठ के प्रॉब्लम को इमेजिन तो नहीं करोगे। सही बात है या तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्रॉब्लम के स्पेस में तो आना है। हम्म तो आप जिस भी स्पेस में काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वहां पर इर्द गिर्द आपको अगर किसी और का दर्द दिखता है हम्म तो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। या अगर आप बोलते हो कि मतलब इनसेंसिटिव इंसान तो को कुछ नहीं दिखता, राइट है ना। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है या कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तो हम्म आपने पहले तो खुद की सेंसिटिविटी को चेक कर लेना चाहिए, सही बात है या है ना। हर कदम पे दिक्कत है, हर कदम पे प्रॉब्लम है। या तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को भी पूछो क्या प्रॉब्लम है तो कुछ तो बता ही देगा, बता या है ना। मतलब कोई ऐसा इंसान थोड़ी होगा कि अरे नहीं मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में, है ना। या So everybody has a problem, and if you can't see them, you need to check your lenses. या And once you do get a problem, then the trouble starts. Is this problem worth solving, or is it not worth solving? then there is a structured way of thinking about that, right? Like understanding, going more deeper, second order thinking से सोचो, brainstorm करो, right? All of those things come into play. तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर आपको हम्म नहीं सूझ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप उसमें कूद जाओ, राइट उसको उठा लो, एग्जीक्यूट एक कस्टमर के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, राइट और सर्विस के जैसे ही करो चाहिए तो। ये मैं कर राइट देता हूँ, आप मुझे फिर आपको जो ठीक लगे दे देना, हम्म ऐसे की भी बात मत करो। आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व अगर आप कर पाते हो तो आप उसको सॉल्व कर दो, और देखो कि कोई सामने से पैसा देता है क्या, कुछ नहीं तो बख्शीश देता है क्या कुछ, हम्म तो आपको पता चल जाएगा आपने वैल्यू ऐड किया कि नहीं किया। इवन आई वुड से कि मतलब ओके सो एक और चीज मैंने पकड़ी, ठीक है, यहाँ पे लाइक इन मिडस्ट ऑफ व्हेन यू आर सेइंग राइट कि सर्विस ही दे दो। सो आई एम थिंकिंग कि अगर मतलब पीपल टुडे राइट लाइक एंटरप्रेन्योर्स टुडे और डेवलपर्स टुडे डायरेक्टली गो इन बिल्डिंग समथिंग राइट, if let's say their business partner says कि ये build करना है, they start building, even the business partner has not thought about कि ये अभी build करना भी जरूरी है क्या, like to even productize this service, is it still important, अगर आपने पहले सर्विस के फॉर्म में दे दो और फिर फिगर आउट कर लो कि ये चलता है, then you scale from there, right, rather than directly jumping into productizing it, right? प्रोडक्टाइजिंग नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहिए। प्रोडक्ट क्या Correct, होता है? correct, correct. प्रोडक्ट तो बाद में आता है। पहले तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख लो कि क्या हो रहा है Right. ना। अगर आप मतलब अगर किसी को कुछ नहीं सूझता ना, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं। Right. मैं जहाँ पूना में रहता हूँ तो वहाँ बहुत सारे एल्डर्स रहते हैं, Hmm. है ना। आप किसी को भी बोल दो मैं आधा घंटा आके पैर दबा दूंगा, Hmm. कोई ना नहीं बोलेगा। Right. तो मतलब आप बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं बोलता हूँ कि आपको क्या दिख रहा है वो देख लो ना एक बार। सही बात है। और आप पैसा मत बोलो उसको, आप शायद कम मांगोगे, वो शायद ज्यादा ही दे देगा अगर आपने नहीं मांगा तो। ट्रू। आप मांगने में गलती कर जाओगे। आप या पैसा मांगो ही मत, 10 लोगों के यहाँ पैर दबा के आओ और देखो एवरेज कितना पैसा देते हैं। उनको बोलो जो आपको ठीक लगे दे देना। प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग तो हो गई, आपने सर्विस देके समझ भी लिया सॉल्व हो रही कि नहीं, बस। राइट, एंड या गॉट इट, अंडरस्टूड। तो घर सो से निकलना जरूरी है, राइट, बेसिकली टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, राइट। स्पेस में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। या आप घर में बैठे रहोगे तो आपको डेफिनेटली नहीं दिखना।
मतलब दिख सकता है अगर आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा पढ़ते ऑर्डर हो करते हुए, हाँ तो या दिख सकता है ना, मतलब बट यू हैव टू बी इन दैट स्पेस वेदर डिजिटली और फिजिकली, यू हैव टू बी इन अ स्पेस वेयर प्रॉब्लम्स गेट क्रिएटेड, या which is या usually a marketplace, ट्रू ट्रू। right? Some kind of marketplace. एक और मेरे को चीज पूछनी थी यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज लाइक फॉर अ वेरी सेल्फिश रीजन, और लाइक फॉर एनी वन हु इज वॉचिंग, राइट, एक लेवल पे ये होता है कि एज लाइक अ फाउंडर और एज लाइक अ बिजनेस पर्सन, राइट, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम फाउंडर सॉल्व कर सकता है। एट अ पॉइंट यस, राइट, अब विल पावर है, सब कुछ है, दोज आर थिंग्स, राइट, बट अ बेटर मैच वुड बी फाउंडर पर्सनैलिटी टू प्रॉब्लम, राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे, सो आई टेल यू राइट टू इन डिटेल, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे सेंसिटिविटी हो रही है दांत में, ठीक है, एंड मैं सोच रहा हूँ सेंसोडाइन बना रहा हूँ, तो पर्सनल हाँ, पेन से एक प्रोडक्ट निकल गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि पर्सनैलिटी जो है आपकी, और जो बिजनेस आपको वेल सूट करेगा, फाउंडर बिजनेस फिट, एज लेट्स से कॉल दैट, राइट, वो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड हाउ डू यू फाइंड दैट? एम आई आस्किंग द राइट क्वेश्चन और नॉट? you're asking a superb question. I'm wondering where these questions are coming from. या You're not sitting prepared with some questions, नहीं right? नहीं नहीं, हाँ Oh, हाँ। superb. एकदम ट्यूनिंग टाइट है इधर। तो ये चीज जो है ना, हम्म। आप अगर आप सोचो, आप बेसिकली वैल्यू ऐड करना चाहते हो, है ना? या तो सो कैन यू ऐड वैल्यू ऑन योर स्ट्रेंथ्स और ऑन योर वीकनेसेस? स्ट्रेंथ्स, कैन यू ऐड वैल्यू ऑन योर वीकनेसेस? मतलब वी कैन, बट टाइम लगेगा स्ट्रेंथ बनाने में, राइट, लाइक है रिक्वायर ना? पेशेंस, टाइम, या So you have to convert your weaknesses to your strengths first, learn, grow, and then at some point you'll you'll become competent enough to contribute. राइट राइट। But you already have some strengths. हम्म Why would you not want to contribute on your strengths? राइट। Most people shy away from contributing on their strengths. They take their strengths for granted. They don't put a number or a value to it. They feel ashamed to give something that comes so easily for a price. दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, राइट, एक लेवल पे इतने स्टिम्युलस है एनवायरनमेंट में दैट यू आर ऑलवेज ड्रिवन बाय, ओ इसने वैल्यूएशन उठा लिया, राइट, कैन वी डू समथिंग लाइक, मतलब आप समझ रहे हो कि एक्सटर्नल स्टिम्युलाई पे पीपल रिलाई मोर देन देयर ओन इनर वर्ल्ड, राइट, मतलब Correct. आपके अंदर क्या है, सो यू आर टेलिंग मी, राइट, क्वेश्चनिंग, तो वी हाँ, वुड कम टू दैट फ्रेमवर्क ऑफ योर्स, आई एम रियली ग्लैड कि हम लोग शेयर कर पा रहे हैं ये सब, एंड आई वुड वांट यू टू इवन शेयर दैट विद पीपल, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी लॉजिकल, रियलिस्टिक, राइट, है ना। correct. तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अंदर पहले ये देख लो कि यू नो अंदर आप क्या कर सकते हो नेचुरली, राइट, पहले बॉटम टॉप, Absolutely. राइट, एंड देन सी टॉप टू बॉटम क्या अलाइन हो रहा है एक लेवल पे। बिल्कुल। सी, अगर आप एक चिकू का पेड़ हो ना, तो हम्म। यू आर गोइंग टू बेयर चिकूस ओनली। या अगर आप आम बनने की कोशिश करोगे ना, हम्म। तो टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ आउटकम नहीं निकलेगा। पन इंटेंडेड, आपने आम बहुत अच्छा चूज किया, फ्रूट, आम रह जाओगे। या मतलब अजीब है ना, लोग या सारी जिंदगी बिता देते हैं वो या बनने के लिए जो वो नहीं है, और जो वो राइट। है उससे पता नहीं क्यों भागते रहते हैं। मतलब आप हम्म देखो, जिन लोगों को बहुत कुछ चीज बहुत अच्छे से आती हो ना, वो फ्री में कर देगा, हम्म। और जो नहीं या आती है ना उसके लिए वो भाव बढ़ा बढ़ा के मांगने की कोशिश करेगा, एंड सही देन ही बात है। ट्राई टू डू दैट। या सो यू डोंट वांट टू डू दैट, यू वांट टू ऑलवेज कंट्रीब्यूट ऑन योर स्ट्रेंथ्स। हम्म अपने वीकनेसेस के लिए हमारे पास लाइफ कम है, अगर हम लोग ज्यादा जी गए ना, तो हम्म। शायद आप एक आइटरेशन तो एटलीस्ट अपने स्ट्रेंथ्स पे कर लो, और उसका है कोई ना? राइट टाइम भी नहीं है, मतलब आप एक लेवल, अगर आज, ठीक है, मैं सागर एट 30 एंड सागर एट 25, राइट, 5 ईयर्स का गैप है, राइट, जो मैं 25 पे कर सकता हूँ, मैं 5 साल वेस्ट कर लूंगा जस्ट बाय एक्सटर्नल स्टिमुला, या मेरे को कुछ ऐसा करना है जो मुझे नहीं आता, राइट, लेट्स डू समथिंग जो मुझे आता है, उससे मेरी लाइफ पहले ज्यादा अच्छे से सॉर्ट हो जाएगी, नॉट माइन, आई एड मोर कॉन। एक हाँ आइटरेशन कर लो, है ना? हाँ, एक सही बात बार है, या अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करके कुछ कमा लो, कुछ खड़ा कर लो, हम्म। और उसमें क्या है कि बाकी की चीजें जो आपको नहीं पता है ना, वो आप सीख लोगे। करेक्ट, और 6 महीने में ये भी वैलिडेट हो जाएगा कि स्ट्रेंथ है भी या नहीं, राइट। हाँ, वो भी नहीं, नॉर्मली लोगों को पता ही होता है, हम्म 5 मिनट में पता चल जाता है। उनको बोलो बचपन में तेरे को क्या, तेरे दोस्त नहीं कर पाते थे, तू कर पाता था। या सबका एक चीज होता है ऐसा कि आई कुड डू दिस बेटर देन एवरीबडी इन माई ग्रुप और माई क्लास और वट एवर। हम्म। That's your strength. I mean, whatever you could do well, you build on that,
एंड देन यू यूज दैट टू कंट्रीब्यूट, इट बिकम एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, मतलब एक स्ट्रगल ना खत्म हो जाएगा। बाकी हम्म सारे बहुत, एज एन एंटरप्रेन्योर ना, यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट विद लॉट ऑफ थिंग्स। द लास्ट हम्म थिंग यू वांट टू स्ट्रगल विद इज योरसेल्फ। वो पहले सॉल्व कर लो, आई थिंक लाइक दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग यू सॉल्व। You start या with यू what you're कॉम्प्लिकेट good इट, करेक्ट। at. Don't mess it up. इंसान वैसे ही कॉम्प्लेक्स है ना इतना, वो आधी चीजें तो कॉम्प्लिकेट करके खुद सॉल्व करना चाहते हैं, दे वुड बस कॉम्प्लिकेट देमसेल्व्स और मजा सॉल्व आता भी खुद ही कर ले। हाँ मजा आता है, है, या ग्रोथ सही में बात है। मजा है। मतलब हाँ इम्पैक्ट दिखता है ना कि कुछ नंबर्स की, और दुनिया भी वैलिडेट आपको वैसे ही करती है कि अगर हाँ, दुनिया में भी अगर आप लाउड स्पीकर देखो, पहली बात तो पीपल से, सो इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी राइट, एंड ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। एक लेवल पे हम लोग कहते हैं कि है ना दुनिया से मतलब नहीं है, और हम हाँ, सारे वही काम करते हैं जो दुनिया को दिखाने वो वाले, राइट, लाइक दुनिया इम्पैक्ट से ही केसेस। मतलब है। हाँ दुनिया से मतलब नहीं है ये तो, हाँ ये झूठ है बात ये, गलत राइट। है, एक्चुअली हाँ दुनिया या से ही या मतलब है। या दुनिया से मतलब नहीं है तो गलत ही है, क्योंकि एक चीज याद रखना, पैसे, मनी इज वैल्यू, एंड वैल्यू कम्स फ्रॉम टू थिंग्स, या टाइम एंड एफर्ट। हम्म So if I give you a good time, you will give me money. If I हम्म save you effort, हम्म you will give me money. If I हम्म save you time so that you can go and spend a good time somewhere else, हम्म you will give me money. राइट, आप पूरा टाइम और एफर्ट, ये दो चीज पे ही पैसा मिलता है। अगर आप किसी का करेक्ट। वक्त बचा रहे हो या किसी की एनर्जी बचा रहे हो, हम्म एफर्ट बचा रहे हो, तो वो आपको पैसा देगा। मतलब कि बिना किसी इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट किए आपको पैसा तो मिलने वाला नहीं है, तो आप एंटरप्रेन्योर तो करेक्ट बन ही नहीं सकते। करेक्ट तो सारे प्रॉब्लम्स हमेशा इसी के ऊपर होते हैं, और सामने वाला क्या, कितना पैसा देगा वो भी अपने वक्त का क्या वैल्यू लगाता है और अपने एफर्ट का क्या वैल्यू लगाता है, इस हिसाब से आपके प्रोडक्ट का प्राइस देगा वो। तभी तो आईसीपी डिटरमिन होता है, आईसीपी करने से पहले ही ये क्वेश्चन है राइट, सबसे कि पहले यही आता है ये आता है या इवन है ना? नॉट लाइक या हम्म। टोटली। अब अब आपको डिटरमिन ये करना है कि मैं इस इंसान का पूरा वक्त बचा दूं हम्म या 100 लोगों की 1 मिनट बचा दूं, या करेक्ट। 1 लाख लोगों की 1 मिनट बचाऊं। अगर वो 1 लाख लोग बहुत मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि इफ हाउ मच, इट इवन नॉट डिपेंड्स ऑन मनी, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन राइट, it depends on you as a person, and then for whom you can solve up, फिर करेक्ट, then you do iterations and you know optimizations, all of that, right? एब्सोल्युटली। Yeah, So your motivation also comes from saving time and effort. correct, We call that correct, freedom. correct। तो मतलब लोग पैसा से फ्रीडम का दे रहे हैं क्या आज, लाइक सवाल ही नहीं बॉस, और है किसी ना, चीज का वैल्यू ही नहीं है। है ना। आपके पास दो ही चीजें हैं, आप जब तक मरे नहीं तब तक का वक्त है, और आप हम्म जब तक मरे नहीं तब तक की एनर्जी है। हम्म या या तो या एनर्जी बचा लो या वक्त, आई थिंक बोथ आर कोर रिलेटेड एज वेल, मतलब समझ रहे हो कि हाउ मच, सो एक लेवल पे आई थिंक वक्त भी लिमिटेड है बिकॉज यू कैन डाई इन एन एक्सीडेंट राइट, बट उस वक्त में जितनी एनर्जी है दैट इज ऑल्सो पैक्ड राइट, उससे ज्यादा तो कभी नहीं मिलेगी राइट। ऑफ कोर्स कुछ लोग ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं। एनर्जेटिक होते हैं और कुछ हम्म लोग कम एनर्जेटिक होते हैं, तो या थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन हम्म बहुत ज्यादा नहीं होता है। हम्म नेट नेट ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, और इसके ऊपर ही पैसा है। करेक्ट, हो सकता है बहुत एनर्जेटिक वाला यू नो हिज फेट इज लाइक अर्ली, डाई अर्ली राइट, सो वी डोंट नो, मे बी या आई हैव नॉट डन दैट थिंग, मतलब कभी स्टडी नहीं किया है या लेकिन लेकिन आई नो लॉट ऑफ पीपल हु गेट अ लॉट डन एंड दे आर सुपर एनर्जेटिक। इट्स या लाइक, मतलब अगर आई एम 1 सिलेंडर ऑफ गैस, दे आर 2 सिलेंडर्स ऑफ गैस, या केस जस्ट बाय केस एक्सेट्रा। फुल थ्रोटल पे वो काम करते हैं, और कुछ लोग हम्म करते भी हैं, मैंने देखा है ऐसे करते हुए। हम्म हम्म So they know themselves well, right? Because they are like doing whatever. matlab, I don't know if they do, but let's say if that particular profile knows what to do, how to do, etc., right? Then they are on a really good path. matlab, या channelizing. So energy is not everything, right? Channelizing of that energy is everything. सुपर, या दैट इज, डायरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। छोटे छोटे स्केल, क्लीशेज होते हैं बट लॉजिक से ना सब टाई बैक हो जाता है राइट, लाइक यू कैन टाई लाइक अ क्लॉथ once you even like start going intrinsically top down bottom down right, so करेक्ट, that's brilliant, yeah एब्सोल्युटली। yeah। और मतलब आपके प्रीवियस पॉइंट है राइट कि दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक लाइक वैल्यू चेन राइट, एक लेवल पे क्या है कि गंगोत्री और संगम है कि एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, हाँ, उसके बीच में कौन कितने कितने बकेट्स पानी डाल रहा है और ले रहा है राइट, बस, इट्स लाइक फ्लोइंग रिवर, वैल्यू इज लाइक फ्लोइंग रिवर राइट, करेक्ट, करेक्ट। राइट, यू टेक सम ऑफ इट एंड यू गिव सम बैक टू इट राइट, एंड संगम पे सब कुछ मिलना है,
इट्स नॉट संगम, बट कहीं ना कहीं जाके वो वैल्यू फ्लो हो ही रही है एवरीवेयर, आप राइट? हाँ, आपने हमेशा देना ज्यादा है लेने से, तो आप या जी नहीं पाओगे। करेक्ट। या हर इंसान, नेट नेट आप देखोगे ना, हम्म तो यू नीड टू गिव मोर देन यू टेक। हम्म इट्स ऑलवेज अ रॉ डील, एंड इट्स दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। हम्म Why is that only the case? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि ऐसा क्यों होता है कि योर योर स्टेटमेंट राइट सेज दैट कि अगर आप ज्यादा दोगे नहीं तो फिर लाइक यू वुड नॉट बी विथ योर सेल्स इज व्हाट यू मीन टू बी आर्टिकुलेट, है ना? आप ये कहना चाह रहे हो कि आप पीसफुली नहीं सो पाओगे, राइट? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम्म आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे अगर आपका ये कैलकुलेशन या एक्सपेक्टेशन में गड़बड़ है उल्टा ना। हो गया। हम्म हाँ, कि मैं एक बोऊंगा और 100 मिलेंगे मुझे, हम्म। तो एक या का 100 हो जाएगा, तो मैं हम्म इतना ही डालूंगा और इतना ज्यादा मैं ले जाऊंगा। या तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है। आपको बहुत ज्यादा डालना है और आपको कम लेना है। यू क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड यू पुट इट ऑन द टेबल एंड यू टेक अ टेंथ ऑफ दैट होम, एंड पीपल विल बी वेरी हैप्पी। हम्म। पर उसमें फिर आपको भी ये इंश्योर करना है कि द टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट, राइट? हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज एंड लेसन दैट सो दैट यू कैन प्रोवाइड 10x वैल्यू एंड स्टिल गेट वन पीस आउट ऑफ इट? योर टाइम ना हम्म is a very funny thing. Don't हम्म don't sorry, I need to get, या excuse me. या Sorry about that. हम्म। चार्जिंग। I'm बैठा हूँ। हम्म Okay, I'm back. या So टाइम इज अ फनी थिंग। हाँ, आप कुछ मत करो ना, या कुछ मत करो, ऐसे ही हम्म बैठ जाओ। आपको टाइम ही चाहिए ना, हम्म डिसएंगेज कर लो। इसीलिए मेरे पास कोई भी आता है ना, तो पहले मैं उसको बोलता हूँ, यार तू एक काम कर, 2 महीने की छुट्टी ले ले, कुछ मत कर। या तो क्या है कि सब अलाइन हो जाएगा कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो मुझे हम्म करने की जरूरत नहीं है, बैठ गया यार, नहीं करना है, हम्म छोड़, मत करो कुछ। किसी हम्म आश्रम आश्रम में चले जाओ और वहां 2 महीना 3 महीना निकाल के और कुछ ना करके देख लो कि भाई फाइनली क्या चीज है जो तुमको बोलती है कि नहीं कुछ करते हैं यार। क्या है वो, मतलब वो लाइक दैट्स द क्वेश्चन नाउ कि व्हाट्स दैट थिंग दैट encourages us to even do something, because that option is always open, वो तो सबके पास है ओपन, राइट? हाँ, है ना? है ना। आप कुछ मत करो, किसी आश्रम में चले जाओ, सेवा दे दो, थोड़ा फिजिकल वर्क कर दो, कुछ हम्म यहाँ वहाँ कुछ कर दो, वो लोग खाना वाना हम्म दे देंगे, रहने के लिए जगह दे देंगे। हम्म तो आप इसके बाद आप डिसाइड करो कि अच्छा, तो अब मुझे करना क्या है हम्म और मुझे क्यों करना है। तो ये हम्म ठीक है क्या? तो अगर यही ठीक है तो जब तक ये ठीक लग रहा है ना, वही करो, मत करो कुछ। मतलब आप नीचे से शुरू ही नहीं किए, लैडर आपने बीच में से शुरू कर दी। जो नीचे एक बार उतर के फिर चढ़ता है ना, वो सही चढ़ता है। हम्म फिर वो हर कदम हर स्टेप पे डिसाइड करेगा कि मुझे ये और एक कदम उठाना है कि नहीं उठाना है, कि बहुत हो गया। राइट। क्योंकि ये सीढ़ी है ना, किधर रुकती नहीं है बॉस। या या समझ गए? हमारे एक साहब थे, वो बोलते थे कि समंदर का पानी है, प्यास बुझाने के काम नहीं आता। बहुत डीप है। समझ गए? तो हम्म ये एकदम बेकार रास्ता है। अगर आप इसमें खो गए, आप मतलब आपने आपा खो दिया, तो गए आप काम से, क्योंकि सही आपको बात है। समझ में ही नहीं, आप डूबते ही चले जाओगे। हम्म तो आपको वापस बाहर आके बोलना है, नहीं नहीं भाई कुछ नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा था इसके लिए कर रहा था, अब मैं कहाँ खो गया। एनालॉजी बहुत सही फिट हो रही है, मतलब मैं कितना पी लूंगा, राइट? वहां से हाँ, जिंदगी भर पीते रहो जरूरी फिर। नहीं है बॉस, या इसका या पागलपन है ये तो। या पागलपन है, हाँ सही बात है। तो लेने के लिए अगर आप आए हो ना, तो आप मर जाओगे। अगर आप देने के लिए उतरे हो ना मैदान में, हम्म तो ये इसमें मजा है। हम्म या क्योंकि उसके बाद अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे, तो उनका नुकसान ज्यादा है, आपका नुकसान कम है। एक और चीज है, आई थिंक लाइक इवन मोर देन मनी, राइट? व्हाट मैटर्स इज आर यू मीनिंगफुली एंगेज्ड, करेक्ट। right? Are you meaningfully engaged is the term which I use. So when I was making a career choice to shift to doing like a full time business, right? तब मैंने अपने आप से पूछा कि मतलब आई वॉज लाइक स्ट्रगलिंग बिटवीन टू चॉइसेस, मैंने अपने आप को 3 महीना दिया, राइट? टू जस्ट डू समथिंग ऑन द साइड ताकि पैसा आता रहे, राइट? लाइक लिटिल बिट मनी ऑन द साइड एक्सेट्रा, और साइड में आई कैन स्टिल थिंक अबाउट लाइक अदर थिंग्स टू डू, राइट? पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, फिगर आउट माई सेल्फ, ऑल ऑफ दैट, एंड दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? तो
व्हेन आई वाज थिंकिंग दैट, तब मेरे को समझ में आई ये चीज कि जो आप कह रहे थे ना कि वैल्यू देने वाली, तब मेरे को एक तो ये समझ में आई, बिकॉज व्हेन यू थिंक बिजनेस देन ऑटोमेटिकली कुछ तो ऐसा माइंड शिफ्ट होता है कि अगर आप उल्टे लेवल पे सोच रहे हो कि आप पैसा मार्केट से ज्यादा उठा लोगे और दोगे कम, राइट, तो आप वो सोच नहीं सकते एक लेवल पे, राइट, एज अ बिजनेस पर्सन, टिकोगे क्योंकि नहीं। हाँ, या सीखोगे नहीं, करेक्ट, एंड यू डाई डाउन एंड यू टैंक लाइक दिस, राइट, लाइक इट वुड रियली गो डीप. So that resonated with me really well, right? Like the philosophy of just giving and doing something. और तभी मेरे को समझ में आया कि while you do, right, that is only when you can be meaningfully engaged, right? Because you can, so what happens by being meaningfully engaged is, right, आप नॉइज है ना दुनिया से फालतू की, वो हटा देते हो, हटा देते यू रिमूव द क्लटर. प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा इसलिए आता है क्योंकि इट्स लाइक मेडिटेटिव, राइट, इट्स like आप देखो, you are jumping from one problem to another, right, but still it's meditative in a way, absolutely right, आप साधना में बैठे हो. process inside you gets a हाँ, chance to come out and get in touch with you, na? या You या get या in touch with the creative process of राइट. the entire universe. So you get to touch that power that knows how to solve problems, Yeah, and that and is why it you could like be, it. yeah. And I think, matlab someone asked me, what's it to become like a, like how to, like, throttle your career if I'm like a, let's say, 3D artist or a graphic designer. मैंने कहा तू ये सोच ही मत, तू अच्छा है ना इसमें, तू ये कर, राइट, बी वेल मीनिंगफुल एंगेज्ड, राइट, डू नॉट डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. तेरे को मजा भी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में चलेगा भी नहीं कंसिस्टेंटली, और तू मीनिंगफुली एंगेज्ड होगा, यू विल ऐड लाइक अ लेयर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय इटसेल्फ, जरूरत ही Correct. नहीं पड़ेगी, राइट. Absolutely. साधना है ना, मतलब वो एक लेवल पे कि आप कुछ भी कर रहे हो एक साधना के लेवल पे कर रहे हो, यूर That's right. मेडिटेटिंग, है ना. आप रात में कुछ भी कर रहे हो उसके बाद, सो वंस यू आर बैक होम, राइट, लेट्स से 7 तक आप मेडिटेट कर रहे हो इन योर ऑफिस, राइट, लाइक डूइंग वर्किंग एक्सेट्रा. 8 o'clock you go back home and you do anything, so that peaceful sleep, right, is what matters. Like I think so the cycle is meditation, right, adding value, right, doing something on the side just to relax and prepare for the next day to add value, and sleep peacefully. I think अगर life इसमें चल जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ. I'm really happy to do this all day, right. तो and ठीक है, peaceful है, right, like you chill on Saturdays, Sundays, etc. Correct. Yeah. बस यही है. देखो, I'll tell you. See, so you asked about motivation, right? What motivates somebody? So we have, and we spoke about it the other day, that we have 6 needs. Yeah, I was coming to that. Yes. There are 3 pairs of conflicting needs. Yeah. Okay? And these needs motivate us to do whatever we are doing at any given time. Na? If you just keep it on the side always with you and just take a look, you'll find what is currently motivating you. And it'll be one of those 6 things. Okay. So the first pair is the need for certainty, that I'll be okay, right? I'll be taken care of. The second is the need for variety. Okay. And this comes, so the wall ka example that I give you, that you build a wall and you know you'll be certain. You get bored, you need more. So you get variety. Right. Okay. And so certainty and variety are both conflicting needs. अगर आपकी लाइफ बहुत सर्टन हो गई, मैंने आपको हर रोज बोल दिया कि क्या होने वाला है ना, आपकी जो पीसफुल लाइफ है उसको आप 10 साल तक हर रोज जी के दिखाओ. हो ही नहीं सकता. हाँ, अगर एकदम सर्टन हो गई और मैं आपको बोल दूं कि आप मरोगे ना, तब तक आपकी लाइफ ऐसे चलने वाली है. तो पागल हो आप, जाएगा आदमी. हाँ, आप पूरा जी नहीं पाओगे, आप पहले ही मर जाओगे. समझ गए? क्योंकि लाइफ में अभी और कुछ बचा ही नहीं करने को. करेक्ट, करेक्ट. तो देन जब पूरा सर्टनटी आ जाता है ना, तो लाइफ में वैरायटी चाहिए फिर. तो फिर वैरायटी आने लगती है, फिर यू स्टार्ट क्रेविंग वैरायटी, देन यू स्टार्ट बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, है ना, बिकॉज उससे ज्यादा वैरायटी लाइफ में कहीं नहीं आती. अनसर्टनटी अगर आपको चाहिए तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ. एवरी डे इज डिफरेंट, या. है ना. एंड देन देयर सो मच अनसर्टनटी आफ्टर दैट यू गो, ओ गॉड, कैन आई जस्ट प्लीज गेट सम सर्टनटी, या. या. right? And then you keep oscillating between these two. And so at any given time, there are decisions you are taking because you are either craving uncertainty or you're craving certainty. ठीक है? So Is there अगर आप, something else which you crave, like between these two conflicting needs, right? So एक layer तो ये है ना. हाँ, हाँ, तो ये 2 हैं. Now the next 2, the need for significance and the need for connectedness. Right. Okay, so
you want to be significant, you want to feel significant, you're in a team, you're contributing more, you want to get acknowledged, right? You want to feel more, and so you try to do more. You know, Yeah. in a team, people they work harder, not because they want the whole team to succeed. Oftentimes they want to do it because they can stand out in the team कि मैंने सबसे ज़्यादा contribute किया है ना, मुझे वो Mm-hmm. award मिलना चाहिए, best employee award या best whatever award. Yeah. And for some reason HR and everybody keeps, you know, they want to do that also. They want to keep propping people up so Abhi that to they the get need of motivated. recognition, need of recognition, right? Like I think, and there are like certain businesses around this, right? Like just Yeah, for the yeah, need of recognition, gifting businesses, right? HR का like most thoda portion of the job is between that, right? Like correct. recognition, all of that, हाँ, right? तो सबको ट्रैक करो, फिर उनको मॉनिटर करो, फिर उनको Yeah. ट्रेनिंग दो, उनको और ज़्यादा पुश करो ताकि वो और काम करे, और फिर एक लेवल पे आके बोले देखो अभी मैं तो, हाँ, वो प्रमोशन करते वो क्या है, वही तो है ना, यू Hmm. बिकम मोर सिग्निफिकेंट एज यू गो अप द Yeah. लैडर. Yeah. प्रॉब्लम विद सिग्निफिकेंस इज दैट यू स्टार्ट बिकमिंग अलोन. बिकॉज अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट फील करने लगता है ना, तो आजू बाजू वाले सोचते हैं यार ये अपने आप को बहुत शाना समझता है, तो इसको छोड़ दो यार, है Hmm. ना. तो फिर कुछ लोग साथ में जाते हैं बाहर लेकिन उसको नहीं ले जाते, Hmm. मूवी देखने जाएंगे तो उसको नहीं ले जाएंगे. तो ये जब मतलब फिर उसको धीरे धीरे पता चलता है कि यार मैं कनेक्टेडनेस खो रहा हूँ Hmm. Right. पीयर्स के साथ, मेरे नीचे काम करने वालों के साथ, मेरे ऊपर वालों के साथ. तो देन ही रियलाइजेस यार बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो गया, अब थोड़ा कनेक्शन की तरफ जाते हैं, है ना. Yeah. Yeah. एंड देन ही स्टार्ट टेकिंग डिफरेंट डिसीजंस, ही स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली Yeah. टू फील मोर कनेक्टेड. Hmm. एंड देन जब कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मतलब समझो कोई सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लिया, या मतलब तो अब सारे लोग एक समान हैं, तो अब सारे लोग एक समान हैं, कनेक्टेड हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, है ना. इफ़ यू आर मी, आई एम यू, देन हु एम आई. Then फिर आपको लगता है कि now you have to stand out. Yeah. Yeah. So I'm then again you start craving, then again you start doing funny things to stand out, है ना. एंड ये चक्कर में इंसान घूमते रहता है. Yeah. और फाइनल पेयर है द नीड फॉर कंट्रीब्यूशन एंड द नीड फॉर ग्रोथ, Hmm. है ना. तो अब अगर आप एम्प्लॉय देखोगे, नई कंपनी में ज्वाइन होता है, तो शुरुआत में उसको कुछ नहीं आता है, लोग नहीं पता, Hmm. थोड़ा डरा हुआ रहता है. धीरे धीरे वो सीखते जाता है काम, उसका कर्व थोड़ा ऐसे ठीक होते जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टीप होता है कर्व, ऊपर Yeah. चढ़ना होता है, उसने Yeah. बहुत कुछ सीखना होता है. Yeah. फिर उसको सीख जाता है पूरा, फिर तो वो ग्रो हो चुका है अभी, तो उसको ग्रोथ पे फिर मजा आने लगता है कि अरे मैं सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ. फिर एक लेवल पे सब आसान हो जाता है, यार बाएं हाथ का खेल है, अरे कोई आया, ये अरे ये ऐसे कर ले हो जाएगा, खुद भी Yeah. काम कम काम कर रहा है, उसको Yeah. पैसा ज्यादा मिल रहा है. Right. तो अब वो कंट्रीब्यूशन के मोड में आ चुका है. पहले वो ग्रोथ के मोड में था, अब वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है. ओवर टाइम फिर क्या होता है कि उसका कंट्रीब्यूशन ऐसे फ्लैट होने लगता है. वो रोज कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उसको उसका मतलब मार्जिनल रिटर्न कम होते जाता है ना. फिर वो उसको जो ग्रोथ क्रेव करता है. Yeah. हाँ, फिर वो वापस उसको लगता है कि यार अभी मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, अरे नए लोग आजू बाजू आ रहे हैं. मतलब मेरे पास एक बंदा आया था जो हमारे यहाँ काम करता था, हाँ. तो उसने बोला सर मैं ये बड़ी आईटी कंपनी में था, मैं नाम नहीं लूंगा. हाँ. तो उसने बोला सर हम लोग तो जावा ही कर रहे हैं अभी, और हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा कुछ, और हाँ. हमको ज़्यादा पैसा भी नहीं मिल रहा, और मुझे तो 7 साल हो गए, और अब ये नए लोग ले रहे हैं, वो सब नए नए चीज़ों में, नई टेक्नोलॉजी में ले रहे हैं, हमको कुछ सिखा नहीं रहे. वो लोग नया आ रहे हैं और उनको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, हम्म. है ना. तो अभी हम ना, मैंने ग्रोथ हुआ मेरा, मैं तो इतना काम किए जा, हम काम नहीं कर रहे ऐसा थोड़ी है, सारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम संभाल रहे हैं, हम्म. लेकिन उसमें सारा पुराना काम है. हम्म. लेकिन पुराना काम, लेकिन रेवेन्यू तो आ रहा है उतना ही, तो हम्म. नए काम का ज्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम जावा में हैं तो हम तो फंस गए हैं. आप कुछ बताओ क्या करें. Valid problem, right? Like. हाँ, वो सवाल ही नहीं बॉस. आप किसी भी हम्म. आईटी वाले को जो आईटी कंपनी में 45 साल का, 40 के ऊपर गया, फिर हम्म. उसको पूछा तेरी लाइफ कैसे चल रही है, हम्म. तो वो कंट्रीब्यूशन के ये साइड के कर्व पे है, Yeah. है ना. उसका Yeah. मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है कंपनी Yeah. में, Yeah. लेकिन वो कंट्रीब्यूट उतना ही कर रहा है, शायद ज्यादा कर रहा है हम्म. है हम्म. ना. तो वो मतलब फंस गया, अभी करे क्या. उसको ग्रोथ चाहिए, अगर हम्म. ग्रोथ नहीं करेगा, वो सीखेगा नहीं, तो फिर वो वापस लूप में फंस जाएगा. Right. Right. तो लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पैसा नहीं मिला, अच्छा ही पैसा मिल रहा है,
ये उसका दिमाग वो आजू बाजू देख करके वो दुखी हो रहा है। वो स्टैग्नेंट फील कर रहा है, वो स्टैग्नेंट है नहीं। वो स्टैग्नेशन का ख्याल आया उसको। फील कर रहा है, राइट। क्या, हाँ हाँ, क्या मैं स्टैग्नेट कर रहा हूँ, आजू बाजू दुनिया भाग रही है तो मैं खड़ा हुआ हूँ, ऐसा नजर आ रहा है उसको, है ना। अब उसको एक बार ख्याल आ गया, फिर तो ख्याल ही उसको पकड़ लेगा, उसके बाद तो he'll see proof of that in everything he does. राइट। Then what will happen is he will start usually normally इसमें क्या होता है कि बंदा आजू बाजू देखता है और वजह ढूंढता है कंपनी छोड़ने की। वजह कंपनी छोड़ना है, ये डिसीजन हो चुका है, लेकिन उसको कोई वैलिड वजह मतलब उस पे आ रहा है जिम्मेदारी के मेरी हाँ, वजह से मुझे छोड़ना है, तो वो या उसको नहीं लेना होता है, फिर वो बिकॉज ढूंढता है इधर उधर। वो राइट आंसर भी नहीं है, बिकॉज समवेयर एल्स ही वुड गो, ही वुड रिपीट द सेम लूप, राइट। या अब क्या होगा, वो यही चक्कर वहां करेगा, फिर और एक बार करेगा, फिर और एक बार करेगा, तब उसको पता चलेगा कि मेरी लाइफ लिनियरली नहीं चल रही है, आई एम गोइंग इन सर्कल्स। दिस इज द बिगेस्ट फ्रेमवर्क फॉर हायरिंग, यू नो व्हाई। जो बंदा फील कर रहा है लाइक सिग्निफिकेंस, राइट, उसको हायर मत करो, राइट। हाँ, यू गेट लाइक, एंड पीपल हु फील कॉन्ट्रीब्यूट लाइक आर फीलिंग की कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और स्टैग्नेंट हो गए, हायर देम एंड गिव देम लाइक मोर सिग्निफिकेंस, करेक्ट। राइट। एंड दैट इज लाइक सॉल्विंग फॉर देम एज वेल एज अ प्रॉब्लम, नहीं। दे डोंट केयर फॉर इट तो। So यार ओके। we'll come to that. We'll come to that. So now with these three pairs, uh, three of them are fake needs and three of them are real needs. Okay. The need for certainty comes from fear. राइट। You want to feel certain because you're afraid that you won't be okay. The need for significance comes from fear. It comes from the thought that I'm not good enough, or I'm not, people don't care about me, or, I'm not getting what I deserve, or whatever. I'm not good enough. Okay. And the need for growth also comes from the thought that I don't know enough, or I'm not good enough, or I'm not competent enough, or I'm. या ये तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों नमक का पानी है। ये कभी खत्म नहीं होता, ये ब्लैक होल है। आप कितना भी इसको भरने की, आप पूरे अंदर घुस जाओगे ना, फिर भी ये खड्डा कभी नहीं भरेगा। एक बार आपके दिमाग में ख्याल आ गया ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम नॉट देयर येट, और आई एम नॉट ये देयर, आता ही रहेगा, ये आता ही रहेगा हमेशा। ये पीछा ही नहीं छोड़ता। इसको आपको सामने फेस करके हटाना है, और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई एम गुड एट दिस, आई कैन कंट्रीब्यूट, आई कैन ऑफर माय सर्विसेज, आई डोंट नीड एनीथिंग। When you start, you have to start beyond that, then only you create something that is of value, and these thoughts never come to you after that. ये एक बार ना मेंटली सॉल्व होता है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका बाहर आप काम करके कितना भी अचीव कर लो, अगर आपके अंदर वो ख्याल घर कर गया है ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, वो आप कहाँ भी पहुंच जाओ, वो आपको यही बताएगा कि आई एम नॉट गुड इनफ। उतना ही नहीं, वो आपको गिराएगा टू प्रूव टू योरसेल्फ कि आई एम नॉट गुड इनफ। यू विल एक्चुअली मेक गेम्स फॉर योरसेल्फ। आप अपने मेटावर्स में जीते रहोगे इन तीनों जैसे, राइट। लाइक यू विल क्रिएट गेम्स फॉर योरसेल्फ दैट मतलब टैंक यू, एंड देन यू वुड बेसिकली मेक श्योर दैट you rise up from there. You will create unnecessary problems is what I think from these three things. You will, if you believe that you're not good enough ना, no matter how, एक तो going up will be a big struggle, and at every stage there'll be a risk that you will just hit yourself. So मैं मेरे पहले जॉब में ना, my boss used to tell me कि ये हर एक इंसान का ना एक थर्मोस्टेट होता है, समझ गए। वो थर्मोस्टेट, वो आप कितना गर्मी वो सहन कर सकता है ना, वो उसका मेजर रहता है। अगर बहुत ज्यादा हो गया ना तो ठबाक से वो हिट कर देता है, तो उससे फट उससे जाता ज्यादा वो नहीं ले ही नहीं पाता, वो है। खुद को गिरा देता है, हम्म। क्योंकि उससे ऊपर, उससे जाना उससे खुद से ही सहन नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, या क्योंकि वो उसको ही भरोसा नहीं आता कि मैं यहाँ तक पहुंच गया, ही स्टार्ट फीलिंग गिडी, यार बहुत ऊपर आ गया, अभी नीचे आता हूँ। अभी खुद को ही नीचे ले आता है। तो ये जो गिडीनेस है ना, ये तीन जगह से आ रही है। आप खुद को एक बार बोल दो कि आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विथ हु आई एम, एंड
I am going out to contribute now with whatever I have. Can I help somebody? Then you go out and you help somebody. Right. And another thing, I've just recently I was talking to somebody. बहुत important बात किसी ने Hmm. बोली मेरे को Hmm. कि आप अपने से बेटर लोगों को कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते, या अगर ऑफर करते भी हो ना तो आप वहां पैसा नहीं बनोगे या वहां सक्सेसफुल नहीं बनोगे। Hmm. आपसे जो नीचे लोग हैं ना Hmm. उनको ही आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। और नीचे ऊपर आर ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। मान लो कि लेट्स से आई माइट बी नॉट एज गुड एज यू वाइल क्रिएटिंग बिजनेसेस, राइट, बट करेक्ट। आई माइट बी अ ग्रेट डिजाइनर, ग्रेट प्रोडक्ट डिजाइनर, राइट। तो वो या डिजाइनिंग में आप जिसको जो नहीं कर पाता है ना उसको हेल्प कर उनको सकते ही हो। सर्व कर सकते हैं या आप किसी और को सर्व नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू ट्रू। समझ अग्रीड। गए। और आपसे जो इवन फाइनेंशियली ना यू हम्म। शुड लुक फॉर कस्टमर्स हु आर बिलो यू। ओके। डोंट लुक फॉर कस्टमर्स हु आर above you. You हम्म। will add a lot more value to people who are below you. हम्म। एंड पीपल जो आपसे बहुत ज्यादा ऊपर है ना, जो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जो ज्यादा हम्म। होशियार हैं, उसको हम्म। कस्टमर नहीं बनाना है कभी। उसको हम्म। कस्टमर बनाओगे ना वो आपको लूट लेगा, आप पैसा नहीं बना पाओगे। पार्टनर बनो। उसको जो भी बनाओ, हम्म। लेकिन उसको कस्टमर, उसको वेंडर बना दो, हम्म। लेकिन उसको कस्टमर नहीं बनाना। वो एक बुरा कस्टमर है जो हम्म। आपसे कम समझ रखता है, जो आपसे कम, उसको कुछ भी, मतलब वो आप यू उसको वैल्यू दो somebody who बेसिकली। is smarter than you या and make money। वो आपको मतलब रिलायंस में बोलते थे कि धीरू भाई को बेच के आप धीरू भाई नहीं बन सकते। हम्म। करेक्ट। आप रिलायंस के किसी भी वेंडर को बोल दो, पूछ लो कि आप रिलायंस बनोगे क्या रिलायंस को बेच के, हम्म। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपको रिलायंस बनना है, अब जो राइट। रिलायंस में जाता है काम करता है ना वो तो हम्म। मतलब दिल में धीरू भाई बस ही जाते हैं, अंदर काम किया हम्म। तो। हम्म। या हाँ, आप किसी भी एम्प्लॉय को बोलो, वो मतलब अभी मुकेश भाई होंगे, पहले धीरू भाई थे, अब मुकेश, मैं भी मुकेश भाई हूँ, मैं भी अन्ना जैसा टोपी नहीं पहनते खाली, लेकिन आप हम्म। बंदे से बात करो वो ऐसे ही बात करेगा कि भाई मैं ही हूँ, इधर ही हम्म। बात करो, इधर आगे हम्म। पीछे कुछ नहीं है। हम्म। करेक्ट। समझ गए। सो वो अंदर घुस ही जाता है। तो आपने ये संभालना है कि आपसे बहुत ज्यादा होशियार कस्टमर है ना, तो फिर आपको उससे वहां जाना टफ है, वहां मत जाओ। हम्म। सो फॉर बहुत एग्जांपल। लोग हैं जो आपके नीचे हैं, बहुत सारी दुनिया पड़ी है या यार। या वहां जाओ जहां कोई नहीं जाता, कुछ नहीं पहुंचता, वहां जाओ हम्म। उनको दो। और प्रॉब्लम आप कितना बड़ा सॉल्व करोगे ये आपके ऊपर है। आप आपकी करेक्ट। जर्नी में आप कहाँ हो ना, वहां से डिसीजन आएगा कि आप 5 लोगों के लिए सॉल्व करते हो, 10 लोगों के लिए सॉल्व करते हो, या 10 लाख लोगों के लिए सॉल्व करते हो। ये आपकी पर्सनल जर्नी के ऊपर डिटर्मिंड है। और जब हम्म। आप 10 पे हो ना तो आप 10 पे रहो, आपको हम्म। अपने आप अंदर से किक आ जाएगी कि यार अभी ये बहुत खेल लिया, अब दूसरा गेम बनाते हैं। अब हम 100 करेंगे। हम्म। समझ गए। या और फिर 100 को ठीक से करो, ठीक से सीखो, क्योंकि वो सारा चीज सीख के ही तो ऊपर जाना है। हाँ, मतलब जो लर्निंग कर्व 0 to 1 में है ना, उससे बहुत अलग लर्निंग कर्व है फ्रॉम 1 to 10, राइट। नो नो, या दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। या तो वो आप यू कैनॉट स्किप एनीथिंग, मतलब यू कैंट हैक। या डोंट ट्राई टू हैक, इट इज योर जर्नी, यू गो थ्रू दैट जर्नी। डोंट लुक लेफ्ट राइट ज्यादा, ये क्या कर रहा है वो, दे आर इन डिफरेंट प्लेसेस इन देयर करेक्ट जर्नीज। करेक्ट करेक्ट, टोटली टोटली। You just stay committed to your journey and say, boss, I like what he's doing. I हम्म। will eventually get there. राइट 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 राइट। But don't say कि I don't know, मतलब ये अभी ये वहाँ है तो मैं अभी वहाँ क्यों नहीं। Hmm. Because that brick building, right? So let's say when you create like your home, right? Your home is created or is built how you or your partner likes, right? Or your family likes, correct? Correct. So अगर आप दूसरे के घर में जाके देख रहे हो कि ऐसा है, यू कैन टेक बेंचमार्क्स, राइट, उसने क्या Correct. क्या सही किया, बट यू नेवर बी हैप्पी इन देयर होम। मजा तो अपने बेड पे ही आएगा, राइट। हाँ, उनके घर रह के देख लो। नहीं आएगा मजा। या हाँ। इवन लाइक मतलब जैसे होता है, ठीक है, सो फ्रॉम आई एम फ्रॉम जयपुर, राइट, और माई होम इज लाइक रियली कोजी, राइट, लाइक फॉर एवरी वन देयर होम इज कोजी, राइट। करेक्ट। अब मैं किसी आलीशान बड़े से घर में चले जाता हूँ ना, किसी दोस्त के, कोई फाउंडर फ्रेंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, मेरे को नींद ही नहीं आती। लाइक आई वुड हाँ, बी लाइक कि यार वर्थ इट नहीं है, मतलब वो इतना फ्लैशी है, फॉर देम इट वुड बी लाइक हाँ कोजी है, राइट। रोज का है।
हाँ रोज कर मैं बोलता हूँ यार मैं शेरेटन में रुक रहा हूँ क्या लाइक यू नो दैट फ्लैशीनेस वो सोने नहीं देती दैट इज डिस्ट्रैक्शन फॉर मी एंड उतनी अच्छी नींद भी नहीं आई योर स्केड्यूल वुड बी ऑफ यू नो फॉर मी फॉर अनदर कॉन्टेक्स्ट के लिए उसके लिए ठीक होगा वो राइट फॉर हिम समथिंग वुड बी लाइक नाइसर बेटर यू नो या बट होता है या सो आप अपनी जर्नी, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने आपका जो ये 3 नीड्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, इफ यू आर नॉट हम्म ड्रिवन बाय फियर एंड यू आर हम्म ड्रिवन बाय कंट्रीब्यूशन, हम्म यू विल डू रियली वेल। वो जो हम्म क्लैरिटी है ना हम्म कि मैं क्यों कर रहा हूँ कुछ कर रहा हम्म हूँ, तो अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, है ना? हम्म प्रॉब्लम है, मुझे दिख रहा है, सॉल्व करने का दिल कर रहा है, शायद मैं सॉल्व कर भी लूंगा क्योंकि मेरे से आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। अब अगर मैंने नहीं सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं होगा, कोई और कर हम्म लेगा। हम्म एंड आई तो थिंक उस एंड पे ना जहाँ पे मतलब एवरीथिंग गेट्स ड्रिवन बाय लव ठीक है वहां पे देर इज नो सेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस राइट मतलब यही है कि, राइट और ये एंटरप्रेन्योर की जर्नी जर्नी में आता है। ये ना हम्म शुरुआत में नहीं होता। हम्म ये जो मैं इतना बोल रहा हूँ ना, ये मेरे जब शुरू किया था तब ये सब कुछ नहीं पता था मुझे। सो राइट माई जर्नी हैज नॉट बीन लाइक दिस, ऑल्दो व्हेन आई टॉक इट माइट फील के दिस इज हाउ माई जर्नी हैज बीन, है ना? हम्म मतलब पहले से ही मुझे ये सारे ख्याल आते थे और मैंने मेरी सारी जर्नी ऐसे ही करी है। एक्चुअली वो हम्म बिल्कुल गलत है, मैंने वो सारा कुछ गलत किया है जो एक एंटरप्रेन्योर करता है। राइट और या फिर उसको वो अक्ल आ जाती है कि हाँ नहीं, ये तो ऐसे चल रहा है। तो हम्म फिर आप उसको हर एक चीज को हटाते हटाते यू काइंड ऑफ सेपरेट ऑल द ट्रैश एंड यू स्टार्ट विद अ क्लियर फोकस, यू गेट क्लियरर क्लियरर एंड देन इट बिकम्स ऑब्वियस कि अच्छा दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो अब ठीक है इसको, तो क्या होता है लाइफ का एक जो प्रेशर रहता है ना वो खत्म हो हम्म जाता एंड दैट्स व्हाई यू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल राइट है। हाँ बस। प्रेशर के बिना ही कुछ बढ़िया बनता है एंड पीपल सो देयर माइट बी डिफरेंट पर्सोनास विच से कि प्रेशर के टाइम पे यू नो आई क्रिएट द बेस्ट वर्क इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रेशर में यू आर जस्ट टिकिंग ऑफ अ टास्क नहीं नहीं, राइट वो एकदम गलत चीज है। हाँ प्रेशर गलत में है जीना, ये एक इंसान ने एक सेकंड भी प्रेशर में नहीं जीना चाहिए। करेक्ट करेक्ट लाइक ये या पॉसिबल है। ये पॉसिबल है हाँ ये डेफिनेटली पॉसिबल है, मैं एक सेकंड भी प्रेशर नहीं लेता। हम्म हम्म बिल्कुल मुझे कोई कुछ, मतलब ऑफ कोर्स अब नहीं लेता, हम्म पहले लेता था, लेकिन वो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि उससे हम्म कुछ नहीं होता। हम्म और आप अगर प्रेशर में नहीं हो ना तो आप बहुत हम्म आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। clearer you can see हाँ clearer you can think clearer you can feel the problem better all of those things right बिल्कुल, और आपके आजू बाजू भी लोग शांत हो जाते हैं फिर। हम्म वो एकदम ऐसे, नहीं तो सारे लोग अगर प्रेशर में आ गए, मेरे को अगर प्रेशर में देख लिया तो सारे लोग प्रेशर में आ जाएंगे तो कोई काम ठीक से नहीं कर पाएगा। Hmm. Yeah, I think like whatever happens in the org gets driven from you know you, right? Or the business करेक्ट। owner, right? Like because आप जैसा react करोगे would be the same for everyone, right? Even our customers, when they call, Hmm. I mean, you should talk to some of our customers over 5 years, people who Hmm. had who are super hyper. Now, when Hmm. they call, they actually say, "Hi, Kumar," Hmm. 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 और यहाँ वहाँ की बात करते हैं। मतलब वो कस्टमर चेंज हो गए पूरे, जो Ultimately तो हाइपर इंसान हुआ ही है, करते थे। correct? इंसान ही तो है end of the day, right? और हमारे साथ काम कर करके हमने बोला, हाँ सर ठीक है, जो भी है देख लेंगे ना, क्या बात है, आप क्यों इतना Hmm. Yeah. आप प्रेशर मत लो, हम लोग बैठे हैं। Right. फिर धीरे Right. धीरे वो खुद भी थोड़ा सेटल होते गया। फिर अब कुछ भी होता है तो उसको पता है यार ये लोग कर लेंगे सॉल्व। Oh, I think मेरे एंड पे लाइट चली गई एक मिनट ना तो नेट तो है मेरे एंड पे बट लाइट इज गॉन अब आ रहा है ना वी विल कंटिन्यू ठीक है विल नॉट ब्रेक इट ऑफ इट सेज एक्चुअली एक्चुअल रिकॉर्डिंग इज हायर क्वालिटी ये बता रहा है कि अभी तेरी रिकॉर्डिंग बेकार है yeah. So and see at the end of जो तीन थे right where there is no existential crisis right on the further end there is like only existential crisis right like you just are questioning your existence every time right because that question is like buggy मतलब ग्रो क्यों नहीं कर रहा तू राइट उससे कर क्या लेगा ग्रो करके मतलब बिल्ड 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 की जगह से बाहर निकल के देख बहुत बड़ी दुनिया है राइट मतलब द एंटायर कल्चर ऑफ दैट राइट उसको अगर पकड़ना है ना, तो हम्म आप सिर्फ खुद को बोलो ठीक है, ये एंड कहाँ होगा, हम्म मेरे को इसका अंत बता दो बस, कि यहाँ हम्म आ गया ना, और लिख हम्म लो कि यहाँ आ गया ना, इसके बाद मैं ग्रो नहीं करूंगा। हम्म राइट
और जैसे ही आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, आप बोलोगे नहीं मैं क्यों एंड बताऊं, मैं तो एंडलेसली ग्रो करूंगा, तो हम्म फिर कब कब मरेगा तू, या है ना? तो अब मरते तक तुझे ग्रो ही करना है, तो अब हम्म प्रेशर तो निकल गया ना। सही बात है। ग्रो कर, कौन नहीं, हर रोज ग्रो ही करना है अपन ने, हम्म तो प्रेशर से क्यों ग्रो करना है, कहाँ जाना कहाँ है? मे बी प्रेशर से पीपल ग्रो, so let's say I grow x% each day, right? Pressure say you can grow x plus y% for some days, but longer run में you will be tired and you would not be able to grow by x percentage. It's not percentage wise, but समझ लो आप इतना ग्रो कर पा रहे हो, ठीक है, आप जो प्रेशर से ग्रो इतना कर रहे करता हो। है हम्म उसका, उसको क्या लगता है पता है, कि मैं ग्रो हम्म कर गया ना तो मैं कंट्रीब्यूट ज्यादा करूंगा। हम्म ये उसका बहाना होता है, राइट। समझ गए? मैं ग्रो क्यों करना चाहता हूँ, बोलता है अरे मैं ग्रो करूंगा तो मैं कंट्रीब्यूट ज्यादा करूंगा ना। इट्स बेसिकली दैट कि मतलब आप डिसीजंस इमोशनली लेते हो फिर रैशनली जस्टिफाई करते हो, मतलब आप लेट्स से यू ईट दैट एक्स्ट्रा गुलाब जामुन, राइट? तो आप बोलोगे मीठा तो कभी कभी चलता है। इट्स दैट, यही बात है। है ना? तो वो मतलब अक्ल तो सबको बहुत ज्यादा हो गई है, हम्म पढ़े लिखे तो सारे हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो जवाब भी तुरंत आ जाते हैं। तो ग्रो या क्यों करना है, तो मैं कंट्रीब्यूट ज्यादा करूंगा, ग्रो करूंगा तो या आई बिकम बेटर। या अरे तेरे पास जो है उसको लेकर के कंट्रीब्यूट करना, तू अभी हम्म कंट्रीब्यूट करना पोस्टपोन क्यों कर रहा है कि मैं ग्रो करेक्ट करके फिर कंट्रीब्यूट कर, करेक्ट करेक्ट। अभी से कंट्रीब्यूट करना चालू कर दे। हम्म प्रेशर में बता, आराम से कर। हाँ, हम्म सुबह उठ, देख इधर उधर, देख क्या कंट्रीब्यूट हम्म कर सकता हूँ मैं, और फिर कर। राइट। लाइट आ गई। लाइट आ गई, प्रॉम्प्ट भी चला गया। प्रॉम्प्ट है अभी भी, एक्चुअली रिकॉर्डिंग इज हाई क्वालिटी बट yeah, right. So, like in this experience you have had, right? I think I was checking your LinkedIn before this podcast. So, matlab, I was like doing my research, right? So, Probity, there was like a company you were in, right? And I think you spent 7 years there, right? करेक्ट। How is it even like spending 7 years in an org? Because I obviously you were a co-founder, right? But what करेक्ट। happened with the company? What like क्या होता है सेकंड स्टार्टअप में, क्या क्या चीजें चेंज होती है? आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट, राइट? प्रॉपर्टी या क्या चेंज सो हुआ? क्या होता है, प्रॉपर्टी में हम लोग सर्विसेज हम्म की कंपनी, सो आई हैड अ सर्विसेज बैकग्राउंड, आई हैड वर्कड इन एन आईटी कंपनी, माय हम्म co-founder also had worked in an IT company, हम्म we were both account managers, so we knew how to run an account, कहीं से प्रोजेक्ट लेकर के उसको खत्म करना, और हम्म उसमें ज्यादा पैसा आए खर्चा करना, खर्चा कम करो, और हम्म पैसा ज्यादा रेवेन्यू आए तो आपका प्रॉफिट हो गया। हम्म ये बिजनेस हमको समझ में आता था दोनों को। करेक्ट तो हम करेक्ट लोग सर्विसेज बिजनेस में उतर गए करेक्ट और हमने करेक्ट सर्विसेज करना चालू कर दिया। करेक्ट फर्क सिर्फ ये था कि उसने सर्विसेज किए थे हम्म यूके और फ्रांस में, हम्म और मैंने किए थे यूएस में, हम्म है ना? किसी ने इंडियन कस्टमर के लिए सर्विसेज नहीं करी थी, राइट। और हम लोग यहाँ आके इंडियन कस्टमर, ऊपर से गवर्नमेंट कस्टमर, ओह, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। है ना? या या और गवर्नमेंट कस्टमर के लिए हमने सर्विसेज चालू कर दी। हम्म अम, तो हमको 7 साल में अक्कल आ गई, मुझे हम्म और उसको भी, हम्म कि एक, द गवर्नमेंट इज अ वेरी गुड कस्टमर, बट द हम्म गवर्नमेंट इज अ वेरी बैड कस्टमर। हाउ? Very good customer because huge opportunities. राइट There's scope of improvement is all over the place. You enter a government office and you can see scope for improvement. हाँ सही बात है, लाइक इवन लाइक मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स और जो डेस्क्स होती है यू कैन स्टिल गो अहेड एंड बट कैटेगराइज देम ऑल दैट। हाँ, बिल्कुल, है ना? मतलब साफ सफाई से लेके पेंट जॉब से लेके देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर द प्लेस, या है ना? प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज, आवर रोड्स, आवर फुटपाथ्स, हम्म everything. So the government is a great customer. There's like हम्म massive opportunity, and हम्म they collect taxes which everybody has to pay. तो या उनको रेवेन्यू का कोई प्रेशर नहीं रहता है ना? हम्म पैसा आते ही रहता है, मतलब हर साल आना ही है, नहीं तो हम्म दादागिरी करते आके डरा देते, करेक्ट। छीन के लेके जाते हैं, आपका घर ले पैसा जाएंगे, तो है, करेक्ट है ना? करेक्ट 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 या पैसा तो आना ही है और खर्चा करना ही है, हम्म लेकिन खर्चा ठीक से करने को नहीं हो रहा है। क्यों? मतलब दे हैव मनी, राइट? बट आई थिंक द मतलब सोर्स there is इज scope for नॉट। improvement. आप आ जाओ ना, करो, आओ आओ, दे विल टेल यू, हम कर रहे हैं, हमसे जो हो पा रहा है। हम्म अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप आओ ना, हम्म आओ म्यूनसिपालिटी में, आओ मेरे कचरा डेपो में जाओ, कचरे के हीप पे खड़े रह के देखो कि कैसे कचरा मैनेज होता है, हम्म फिर बोलो कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा क्यों नहीं है राइट है ना? या तो आप आओ, या हम जो कर रहे हैं वो फिर आप एक्सेप्ट करो, राइट। है?
तो वो अपने बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. Hmm. So we went there and we kind of helped out. But the problem is that you get into this cash flow nightmare. You are Hmm. spending, you are giving your employees money, and then you have to give salaries, you have to do everything, right? And then, but your bills don't come out on time. Hmm. Everybody is Right. scared to sign the file कि इसको पैसा दे दिया तो ये भाग जाएगा, इसको पैसा दे दिया तो oh shit, मतलब if I sign the dotted line, मतलब I am accepting that this software is all okay, और कल अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मेरा It's my बॉस मुझे, responsibility. Hmm. और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, और मैंने तो रिक्वायरमेंट्स ही नहीं दिए थे, रिक्वायरमेंट्स तो उसने दिए हैं लेकिन मेरी भी साइन ले रहे हैं. फिर वो बोलेगा Hmm. मेरी साइन लेते हुए क्यों, मैं नहीं साइन करूंगा, मुझे नहीं, क्लैरिटी ही नहीं है वहां पे, मतलब क्लैरिटी ही नहीं है कि करना क्या है, इसकी क्लैरिटी नहीं है. है ना. तो एनीवे, Hmm. तो पैसा निकालने को टाइम लगता है बेसिकली. But तो कितना time? Like I would, even ask that deeper question. Let's say someone wants to do e-governance, right? Right? Two questions. One is like how much time does it take for you to, get money? And every government is different. Like every state level government is different, right? या So what's the time frame like? इफ यू वांट टू डू ई गवर्नेंस, क्रिएट अ SaaS प्लेटफॉर्म, टेल देम कि सर आप क्रेडिट कार्ड डाल दो इधर, हम डेबिट मार लेंगे. Hmm. Yeah. आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा, Hmm. ये रहा, लॉग इन करो, खुद सेटअप करो, आपके सर्विस प्रोवाइडर को मेरे पास भेजो, Hmm. मेरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, मैं उसको ट्रेन कर दूंगा, जो आपके साथ डील करता है ना, आपका आईटी वाला Hmm. जो भी है, Hmm. उसको मेरे पास भेज दो, मैं उसको ट्रेन कर दूंगा ये सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है. अगर आपको उसको काम देना है तो उसको बोलो कि अपना क्रेडिट कार्ड इसमें डाल दे, मैं उसको डेबिट करते रहूंगा, वो आपसे पैसा निकालते रहेगा. तो वैल्यू दे रहे हो टाइम की, और पर मंथ उनको भी चार्ज करते रहो, हाँ. है ना? और उसको बीच वाला जो बंदा है, लेट हिम टेक द हैसल ऑफ बिलिंग देम एंड टेकिंग मनी फ्रॉम देम. यू डोंट डू इट डायरेक्टली. यू सेटअप अ SaaS प्लेटफॉर्म, गो गिव अ डेमो एंड टेल देम सर आपके आईटी वाले को बोल दो, मैं उसको सब कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, आई गिव हिम सम कट फॉर माई सॉफ्टवेयर, आई विल मेक हिम अ पार्टनर. फॉर एग्जाम्पल जीमेल है ना, हम्म. गूगल जीमेल है, तो हम्म. मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस देयर मेल इज ऑन जीमेल. अब जीमेल पे तो क्रेडिट कार्ड डाल के रखना पड़ता है इफ यू वांट टू होस्ट हम्म. योर डोमेन ऑन दैट, है ना. या या तो क्या होता है, उसका वेंडर होता है इनका, जो अपना क्रेडिट कार्ड डालता है. ये लोग के पास तो क्रेडिट कार्ड होगा नहीं, अच्छा, उसके लिए भी वेंडर है? तो वेंडर होता है, अपना क्रेडिट कार्ड डाल देता है, इनको बिल करता है और पैसा निकालता है. तो जीमेल उनको बिल कर देता है, राइट? बेसिकली ओके, दैट जीमेल को वेंडर. कुछ पड़ी नहीं है यार, तुम गवर्नमेंट हो जो भी हो, मेरे को क्रेडिट कार्ड दिखा, मैं पैसा काट लूंगा. राइट 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 राइट. तो हमने भी ऐसे ही काम करना है. वही सही है. मतलब आई थिंक इतनी डिफिकल्टी के बाद इफ समवन अगेन गोज बैक, तो एक ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट सेट करना पड़ेगा जस्ट टू गेट मनी आउट, राइट? अरे बहुत बुरा हाल होता है. हम्म. एनीवे, सो कमिंग बैक, सो एक चीज हम सीख गए कि प्रॉफिट इज लाइक फूड हम्म. एंड कैश फ्लो इज लाइक ब्रेथ. हम्म. प्रॉफिट इज लाइक फूड, कैश कैश फ्लो. फ्लो इज लाइक योर ब्रेथ. ओके. अगर कैश फ्लो नहीं है ना, तो आप सांस भी नहीं ले पाओगे, एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे. हम्म. लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है ना, आप 15 दिन भूखे रह सकते हो. हम्म. 15 दिन खाना नहीं खाया ना, उपवास कर लिया, एक बार कम खाया तो चल जाएगा, लेकिन सांस नहीं ले पा रहे ना, ये नहीं चलेगा. हम्म. तो यू मस्ट कलेक्ट प्रॉपरली ऑन टाइम. हम्म. इफ यू आर नॉट कलेक्टिंग, देन यू आर गोइंग टू बी इन अ सूप. हम्म. राइट. और हमारे देश में एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, उसमें एक बेकार बीमारी है क्या? कि वेंडर को पैसा टाइम पे नहीं देना, हम्म. है ना. मतलब खुद खुद के करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है, ऐसा नहीं कि I've वो कहीं experienced लगा it. के वो Yeah. कमा रहा है, Yeah. I've experienced it. Yeah. लेकिन वो पैसा पड़ा है उसके पास, लेकिन उसको वेंडर को नहीं देना यार. हम्म. दे फील गुड कि मैंने इसको 15 दिन बुलाया. उससे कुछ होगा भी नहीं. मतलब समझ रहे हो, उनका लॉजिक ऑफ स्टोरिंग मनी फॉर लाइक अ लॉन्गर टाइम इज लाइक टू अर्न इंटरेस्ट. वो भी नहीं कर रहे वो लोग, समझ रहे हो? वो भी नहीं कर वो रहे. करंट अकाउंट में ही पड़ा है पैसा, हाँ हाँ हाँ. उसको उसमें कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इसको रगड़ाएगा, करेक्ट. इसका पैसा नहीं देगा. तो ये जो बीमारी है ना, इसको हटाने में हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. मेरा अभी पूरा फोकस इसी चीज पे है कि पूरा कुछ प्रीपेड पे ही चले. सर्विस होगा, प्रीपेड करो, वॉलेट दे दो, वॉलेट को टॉप अप करो, जब तक इसकी सांस चलेगी इसके पैर चलेंगे, नहीं तो गोली चलेगी, सिस्टम बंद हो जाएगी. करेक्ट. प्रीपेड ही नहीं है तो काम करना ही बंद कर दो, खत्म. बस. कट इट शॉर्ट, राइट? तो गवर्नमेंट को भी बेचना है ना, तो प्रीपेड वॉलेट उसको बोलो इसमें पैसा भरो सर,
जब तक इधर क्रेडिट होगा ना तब तक ये चलेगा, इधर क्रेडिट खत्म हो गया ना तो ये बंद हो जाएगा। आपको चाहिए तो लो, नहीं तो रहने दो। और इसका अगर आपको सोल्यूशन बीच में कोई चाहिए तो आपका वेंडर ले आओ, उसको मैं पार्टनर बना देता हूँ, ऑथोराइज मेरा सेल्स पार्टनर जो भी वो अपना कार्ड डाल देगा, मैं उसको डेबिट करते जाऊंगा, आगे का वो देखे और आप देखो। Nice, nice, nice. This is actually a good solution. मतलब I think lot of businesses struggle with that. Even like mostly services, right? क्योंकि product में तो they ask you card upfront, right? Like SaaS product में software as a service specifically, they ask you like your card upfront और वो हो बस जाता है, बस ये right? ऐसे ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलना है। तो आप गवर्नमेंट के साथ आराम से फिर काम कर सकते हैं। आईटी वालों ने तो यही करना चाहिए, बस ये सॉफ्टवेयर है, आप बोलो मैं आके सिखा देता हूँ, आपका वेंडर दे दो मेरे को, जिसको पता है कि आपके पास से पैसा कैसे निकालना है। हमको ये Right. नहीं आता है। और होता है उनके पास है ना वेंडर. सबके पास अपना आईटी वेंडर होता है सर। ऐसा कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है Right. जिसका प्यारा दुलारा एक आईटी वेंडर नहीं होता, जो Right. रात को भी फोन आया कमिश्नर साहब का तो वो फोन उठा लेता है। Okay. Okay. समझ गए? जब हम प्रॉपर्टी में जब हमने सॉफ्टवेयर सारे बनाए थे, 35 एप्लीकेशन बनाए थे डीसीएमसी में। Okay. हॉस्पिटल के ओपीडी काउंटर पे कुमार और मेरा सेल नंबर लिखा था, काउंटर पे अंदर वॉल पे। अच्छा. रात को 2:30 बजे भी कॉल आता था हम्म. कि सर ये छोटा बच्चा है, मर गया है और उसका वो बिल प्रोसेस नहीं हो रहा है। और मैंने वो उधर लिखवाया था कि कुछ भी हो जाए, ऐसा इमरजेंसी वाला कुछ भी हो तो आप प्लीज मेरे को फोन करो, बाकी किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। हम्म. समझ गए? तो ये मतलब इस लेवल का सर्विस वाला कोई बंदा होता ही है उनका, जो ऐसी सर्विस इस लेवल की सर्विस देता है। राइट. राइट. समझ गए? सो you deal with that guy, he knows how to deal with the organization, you just make sure that he is amply compensated. Right. You exited that venture, right? Yeah, I exited that. I had enough. And but of course they have also now gone into like a transactional model, so they Okay. also Yeah. don't raise bills anymore. Then you would have suggested समझ them, में आ right? गया कि कि Do that बेकार काम है। instead of. हाँ हाँ सही बात है. मतलब रेज करोगे बिल फिर वो अपने आईटी वेंडर को. So it's like that. आप भेज रहे हो बिल फिर वो अपने आईटी वेंडर को भेज रहा है, राइट? हाँ इससे अच्छा डायरेक्टली उसको भेजो. बस। करेक्ट. उसका हेडेक ही मतलब बिकॉज ही इज मोर बिजी. आईटी वेंडर का काम ही है कोर जॉब. हाँ उसको पता है, उसके रिलेशनशिप से अंदर उसको फाइल किधर से जाती है, किसके पास जाती है, उसको सब पता है। उसको वो राइट. प्यून को भी जानता है, वो सबको जानता है करेक्ट. ना? तो आप कहाँ वो सब करने बैठोगे? उससे अच्छा उसके साथ पार्टनरशिप कर लो। वो भी बंदा भी फंसा हुआ रहता है, राइट. उनका आईटी वेंडर कभी ग्रो नहीं कर पाता, वो करेक्ट. नई सिस्टम बना नहीं पाता, उसको कभी वक्त ही नहीं मिलता कुछ करने का। पूरे दिन कुछ ना कुछ चल रहा है. उसके लिए भी विन विन है, उसको भी कुछ नया चीज के साथ जुड़ने का मौका मिल या रहा या उसके लिए भी अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया, राइट? है। बिल्कुल बिल्कुल। या पर एक बात बताओ, हाउ हार्ड इज इट टू एक्सेस दोस प्रोजेक्ट्स? मतलब इट्स रियली हार्ड, राइट? और मतलब यू कैन प्रपोज एन आइडिया, नॉट हार्ड, इट्स नॉट हार्ड एट ऑल, राइट? डोंट थिंक लाइक दैट। इफ यू सी, आई टेल यू, हमारे देश में हमको गवर्नमेंट के साथ काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी कर ही रहे हैं, कोई जो नहीं कर रहा वो भी पैसा तो दे रहा है गवर्नमेंट को, राइट? इन फॉर्म हाँ ऑफ नहीं, टैक्सेस वैसे नहीं, एक्सेट्रा. उनके साथ मिलके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे। राइट. और अगर आपको डोमेन नॉलेज है उसका, या आप किसी को जानते हो जो उससे जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ जुड़कर आप सिस्टम्स बनाओ। और जैसे मैंने कहा कि वो सिस्टम्स को सैस बनाओ, उनको बोलो कि आपको चाहिए आप ले लो पैसा, हमको कुछ बोलो मत। ये सिस्टम राइट. पड़ा हुआ है वहां पे, आप जीमेल यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, तो वैसे इसको भी यूज कर लो। ये आपके काम की सिस्टम है, आप यूज कर लो, अपने वेंडर को बोल दो, तो हो जाएगा काम। इतना यू शुडंट फील। एक्सेस क्या होता डिफिकल्ट है है. मैं बताऊं उनका, मतलब अभी मैं, अगर हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से काम कर रहे हो आप, तो आपको लेटर भी मराठी में आएगा अगर अच्छा. महाराष्ट्र में, है ना? तो आपके वो स्किल्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, या किसी को रखना पड़ेगा जो एटलीस्ट कम्युनिकेशन कर पाए। उनके साथ बात करने में भी आपको लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी होती है कई बार। तो करेक्ट. जरूरी नहीं होता, लेकिन इजी पड़ता है, आसान हो जाता है। तो राइट. यू शुड थोड़ा वो सेंसिटिविटी रखना चाहिए कि आप या तो वो भाषा बोलो खुद, या किसी को ले जाओ जो वो भाषा बोलता हो। या एक पर्सनल क्वेश्चन है. सो सर्विसेज जब आप कर रहे थे, राइट, लाइक एज अ सर्विस बिजनेस ओनर, राइट, नींद आती थी? लाइक वुड इट अलाउ यू टू स्लीप? लाइक you know, like there is something or the other going on, like till from 11 to 9, right? You are in current days, I am in office, right? I want to be like थोड़ा, you know, थोड़ा पीस लाना चाहता हूँ मैं लाइफ में. इट्स लाइक दैट, यू नो,
I understand that framework, right? Now I want to go to the this side, right? पर services में processes भी हैं, right? We have created processes to help us, right? But was there a time after a point when you were, able to take things business कर रहे हैं तो अपन को time देना पड़ेगा, right? बट करेक्ट। एक एक्सटेंट होती है कि थकने के बाद यू शुड मतलब फिर आप अगले दिन नहीं प्रोसेस कर पा रहे, राइट? बराबर। एक लेवल पे तो वो हुआ था एक पॉइंट के बाद, या फिर लाइक इट जस्ट कंटिन्यूड एज लाइक अ नो रेस रेस ही चल रही है मतलब पूरे दिन? नहीं, मैं कभी रेस में मानता ही नहीं। हम्म। वो तो मैं शुरुआत से भी नहीं करता था। हम्म। समझ गए? टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। ये ये बहुत ही डाइसी चीज है। हम्म। जल्दी किसको बोलना, या कोई चीज टाइम में हुई है, हम्म। या इसको बहुत देर लग गई, राइट। है ना, ये कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड होता है? और ये इसके स्टैंडर्ड्स कहाँ लिखे गए हैं कि आपने कोई चीज एक दिन में डिलीवर करनी है, एक घंटे में डिलीवर करनी है, एक महीने में डिलीवर करनी है, या आर्बिट्ररी एक है। साल में? आर्बिट्ररी है। है ना, एकदम आर्बिट है। हम्म। सो इफ यू फाइंड दैट यू हैव अ प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार विल कम आउट विद 4 फिल्म्स इन अ ईयर, है ना, एंड आमिर खान विल डू 1 फिल्म इन 2 years और राइट। 3 years. राइट। So is Amir Khan doing a bad job? नॉट रियली, राइट? Is Akshay Kumar doing a bad job? नॉट रियली। हाँ, समझा, है ना। हाँ समझ गया, आई गॉट। तो आप अपने हिसाब से आप क्या कर रहे हो, आप क्या डिलीवर कर रहे हो, हम्म। उसमें क्या सही वक्त है, ये इसका बेस्ट जज आप ही हो, और कोई हो ही नहीं सकता। ओके। और वो आपकी कॉम्पिटेंस और डिसाइड नहीं करता। आउटकम उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। हाँ मतलब ओके, सो बेसिकली आप कितने कॉम्पिटेंट हो और क्या आउटकम दे पा रहे हो, राइट? उसके तो बेस अगर मैं एक या सॉफ्टवेयर जावा में बनाता हूँ ना, और हम्म। वही चीज डार्ट में करता हूँ, फ्लटर में करता हूँ, हम्म। तो आई विल राइट 1/10 द अमाउंट ऑफ कोड। हम्म। या लेकिन अगर मैं जावा में चिटका हुआ हूँ और मैंने मूव नहीं किया ना, तो मैं जावा में उतना ही टाइम लगाऊंगा। या एंड दैट्स द रीजन यू लर्न 12 लैंग्वेजेस, राइट? हाँ। है ना? एंड विद एवरी लैंग्वेज द अमाउंट ऑफ कोड यू राइट इज बिकमिंग लेसर एंड लेसर एंड लेसर एंड या लेसर, या है ना। एंड नाउ टुडे वी आर ऑलरेडी डूइंग नो कोड एंड देयर सो मेनी नो कोड या प्लेटफॉर्म्स। या Yeah, even I see like a lot of buzz on Twitter just for no code, जबकि मतलब people do not understand the use case and then go behind it, right? हाँ, आजकल बस कुछ buzzword है तो वो कर लो, तभी हम कोर्सेज जल्दी बिकते हैं, पकड़ right? लेते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन एटलीस्ट आ तो गया। हम बोल आ तो रहे गए हैं कि यार। बिना कोड किए आप कुछ बना सकते हैं। Hmm. Yeah, and today I was having this conversation with my CTO, right? मतलब to understand how he thinks, how hiring takes place for him, and वो बोलता था कि पहले ना developers did not understand कि कितना value add करते हैं, right? मतलब generic sense में बात कर रहे थे, मोटी मोटे level. Now developers know how much value they add, right? So as an entire system, he was pointing generically कि पूरे system में hiring a good dev is very difficult, right? And like to retain them is even more difficult, right? ऐसा like have you seen that happening, or like is this like the times to पहले थे वही है? Has this like the shift happened? It depends on a lot of factors, but let's say you have like a dev who is your friend, has like vision aligned, equity है, तब वो they retain. But what happens otherwise? Like have you faced problems with dev recently? देखो, हम्म। अगर कोई आज इंजीनियरिंग करने जा रहा है और वो कंप्यूटर साइंस ले रहा है, हम्म। तो मैं उसको बोलूंगा मत ले। क्यों? ये 4-5 साल का ही काम है बस। अच्छा। आज हमको दिख रहा है कि लोग नहीं मिलते, और 75-75 लाख रुपया, मतलब फुल स्टैक डेवलपर हाँ है बोलता ना, है। 75 लाख रुपए, right? मतलब क्या होता है यार 75 लाख? क्रेजी। देखो, क्या 75 लाख बोल कौन पाएगा जब उसको लगेगा कि सामने वाला दे देगा ना। या अब सामने वाला अगर देने बैठा है तो ये मांगेगा क्यों नहीं, सही बात है। है ना। अब आपको इन्वेस्टर ने फंडिंग कर दिया और आप बोलते हो यार मेरी टेक टीम में बढ़ा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो बोले आप पागल हो गया क्या, कर क्या रहा हम्म। है ना। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं ला रहा हूँ आ रहे हैं, लेकिन लोग आके आके चले जा रहे हैं, तो बोले अरे नहीं तू दे ला उसको, तो ठीक है लाते हैं सर, वो 75 लाख मांग रहा है, तो दे दे उसको 75 लाख, Yeah. है ना।
ये प्रॉब्लम कैपिटल का है. Capital is Hmm. going too much capital. When it goes after too few resources, then what do you get? Inflation. Hmm. Yeah. So it's just Yeah. market economics, no? Hmm. When too much capital goes after few resources, then you Right. see inflation. तो आप कैपिटल को कम कर दो Hmm. या रिसोर्स बढ़ा दो तो ठीक हो जाएगा. अब रिसोर्स बढ़ाना भी रिस्की है. आंख बंद करके सब लोग Hmm. उसमें ढोपोगे सबको. एक Hmm. तो हमारे यहाँ कोई पढ़ाते नहीं सिखाते नहीं. 4 साल बी Correct. करके निकलता है बंदा. वो कुछ नहीं आता होता Correct. Correct. है ना. उससे अच्छा 4 साल यूट्यूब पे बैठेगा ना तो बहुत अच्छा डेवलपर बन जाएगा. सच बात बहुत बोलते हो आप बहुत सच बोलते हो कुमार नहीं सच्ची बोल रहा हूँ. 4 साल बहुत ज्यादा होता है. जी. 2 साल यूट्यूब पे बैठेगा ना अगर तो बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपर बन जाएगा. और वो बाहर निकल के करता यही है 4 साल के बाद. करते ही है यार करते है ही है ना. एग्जैक्टली स्टैक ओवरफ्लो, गूगल और यूट्यूब, ये तीन के यार अलावा कुछ काम ही नहीं है उसको. और सही मैं बात है आपको गारंटी देता हूँ कि 5 साल के बाद डेवलपर नहीं लगेंगे. अगर कोई आज डेवलपर बनने जा रहा है ना तो हम्म भूल जाए. मत करे, ना करे. 5 साल बाद क्या होगा लाइक व्हाट वुड बी द शिफ्ट व्हाट कैन यू सी हम्म इतना ज्यादा नो कोड सॉल्यूशंस, बहुत अडेप्टिव फ्लेक्सिबल नो कोड सॉल्यूशन बन जाएंगे कि हम्म जो डेवलपर नहीं है ना वो खुद डेवलपर बन जाएगा. हम्म मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब हम लोग ना विजुअल बेसिक आया था, जब माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक निकाला था, है हम्म ना. तो जो सी प्रोग्रामर्स हुआ करते थे या असेंबली प्रोग्रामर्स हुआ करते थे वो हंसते थे विजुअल बेसिक को देख के. बोलते इसको प्रोग्रामिंग थोड़ी बोलते. हम्म प्रोग्रामिंग तो हम करते. तेरे विजुअल बेसिक में मेरे सीपीयू के रजिस्टर में वैल्यू सेट करके दिखा. हम्म वो तो नहीं होता है. लेकिन सीपीयू के वैल्यू रजिस्टर में वैल्यू क्यों डालना हम्म है ना. या ये नहीं मेमोरी पूछता कोई हाँ नहीं डालना है. मतलब उसको जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत उसके नहीं है नाम से करेक्ट काम हो जाता है. करेक्ट करेक्ट लेकिन लेकिन वो नहीं कर पाता है तो, और मैं कर पाता हूँ. तो अब अगर आप मतलब वो उसका कुछ वैल्यू नहीं या है ना. या वो असेंबली ये जो 5 लाइन में लिखता था वो हम्म असेंबली में लिखने बैठा तो वो थक जाए तब तक भी ना जनरेट हो. या तो विद दैट what happened was that the people who were developers would say ये विजुअल बेसिक को प्रोग्रामर नहीं बोलने का. वो खुद को प्रोग्रामर बोलता है विजुअल बेसिक को. इसको प्रोग्रामिंग नहीं बोलते हैं. या है ना. धीरे धीरे नो कोड प्लेटफॉर्म्स वहां आ जाएंगे जहाँ डेवलपर्स बोलेंगे इसको प्रोग्रामिंग थोड़ी बोलते हैं. अच्छा लेकिन सब लोग प्रोग्रामर बन जाएंगे. या राइट तो जो डिफिकल्ट था वो इजी हो जाएगा. तो सारे लोग कर पाएंगे फिर. So even like the broader question, right? Today, providing development, so that's why like as a org, right? हमने क्या किया? हमने कहा development services नहीं देनी, ठीक है? What we'll do is we'll provide QA and DevOps services. I don't know how good a business decision that is, but you validate. Like, what do you think? Because you have been in dev for like a longer time, If right? you're a designer ना, Hmm. you should give a UX Hmm. का सर्विस कि We are doing यूजर that. एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है. Product design we are doing holistically because I think that there is like a lot of money to be made, right? Dev से मैं खुद भी पीछे हट गया क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन में यू आर थिंकिंग एज अ प्रोडक्ट गाय राइट करेक्ट करेक्ट. राइट तो आप डिसीजंस जो ले रहे हो एक्चुअली यूजर्स आ रहे हैं सो वी हैव लाइक अ रियली गुड सीडीओ राइट लाइक फॉर सॉल्विंग डिजाइन बट टेक के परस्पेक्टिव से हाउ वी सॉल्व इट इज कि क्यूए करते हैं बस राइट और हमारा सर्विसेज का लैंडस्केप भी है कि एक टाइम पे हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे सर्विसेज को 12 या 20 क्लाइंट से ज्यादा हमको चाहिए भी नहीं और 12 या 20 बराबर. क्लाइंट मिल जाएंगे राइट कहीं से भी यूएस से यूके से बिकॉज हु पेड लाइक इन डॉलर्स राइट दुनिया बहुत बड़ी है. हाँ मिल जाएंगे राइट तो उतने में बिजनेस चल बहुत जाएगा बड़ी है दुनिया. या हाँ. राइट तो उतने में ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है ना मतलब यू नो व्हाई गो एंड डू टू मच वर्क इन सर्विसेज व्हेन यू कैन हैव डिसेंट साइज्ड बिजनेस राइट तो मेरा यही थ्योरी था तो अब ऐसा हो रहा है क्यूए में हम शिफ्ट करें क्यूए डेवऑप्स एंड मेंटेनेंस राइट इज दैट इवन अ गुड प्लेस टू बी एट It's a good place. See, I'll tell you. How do you decide what is a good place to be in? जो 5 Is साल there बाद डाई a डाउन नहीं कर रही हाँ लाइक जो 5 साल बाद जा नहीं रही राइट हाँ हाँ. बेसिकली कैसा है कि आप देखो, मेरे पास ना बहुत लोग अपने बच्चे भेजते हैं कि इसको हाँ कुछ हाँ एडवाइस दे हाँ दो, है ना. हाँ तो मैं उनको क्या बोलता हूँ. और यूजुअली टेक वाले ही होते हैं क्योंकि मैं टेक ही हूँ. तो हम्म मेरे पास भेज देते हैं. तो मैं हम्म उनको क्या एडवाइस देता हूँ तो वो मुझे मैं पूछता हूँ तेरे को क्या एडवाइस चाहिए. हाँ तो बस मैं
क्या काम करूँ कि मुझे फ्यूचर में अच्छा पड़ेगा, मतलब क्या टेक्नोलॉजी चूज करूँ आज, मतलब डेटा साइंस में करूँ या बिग डेटा में करूँ या एआई में जाऊँ, एमएल डीप लर्निंग करूँ, क्या सीखूँ मैं कि मेरा आगे करियर बहुत ब्राइट हो जाएगा। हम्म तो बोला देख, आगे का मुझे दिखता है, ये पता नहीं तुझे किसने बताया, नहीं तो मैं यहाँ हम्म बैठा नहीं होता। करेक्ट इफ आई कुड सी द फ्यूचर, हम्म तो व्हाई वुड आई बी हियर? तो व्हाई डू यू थिंक आई कैन, नोबडी कैन सी द फ्यूचर। there's a possibility you might be crazily wrong, right? Like there and me as well, right? Sabki possibility can be wrong, right? But in हाँ a हाँ, right, yeah, yeah, yeah. तो आई डोंट नो, मतलब Hmm. मैं, सो व्हाट डू, हाउ डू आई डिसाइड कि मुझे Hmm. क्या करना है? Yeah. आई डिसाइड कि मुझे क्या काम करके मजा आ रहा है। True. True. मुझे ऊपर वाले ने एक ही लिटमस टेस्ट दिया है, टू टेल Hmm. मी वेदर आई एम ऑन माय पाथ और आई एम नॉट ऑन माय पाथ। और फिर वो माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है, देन यू गो बैक टू रीथिंकिंग एवरीथिंग, राइट? बिकॉज राइट अभी ये आप काम करने में मजा आ रहा है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं या नहीं करूंगा। करेक्ट खत्म होगी बात। या सही बात है बस, तो मेरे लिए वेदर आई एम ऑन माय पाथ, आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट, हम्म there is only one litmus test. All I हम्म have to ask myself is, am I enjoying this? या टोटली टोटली But if I'm not enjoying this, then I will not do it. I don't care what technology it is. हम्म Even the technology tells me कि हाँ ये टेक में मजा आता है। मैं डार्ट में प्रोग्रामिंग करता हूँ ना, बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट ओल्ड स्कूल थिंग। आप इट कह इज रहे थे सो, ना या it is such a beautifully built language. It is such a modern language. It knows so much about how much of a struggle it was to code in the past and how easy they've made it. या It's so elegantly built, whoever has built it. So it's so much more fun. So you enjoy it and then you say, छड़ साला जावा नहीं करना, हम यही करेंगे, अभी नहीं करेंगे जावा। मैंने हमेशा देखा है आप डार्ट लाइक इवन व्हेन व्हाइल वी आर कमिंग बैक फ्रॉम लाइक लोनावला राइट, तब भी हम गाड़ी में थे एंड व्हेन वी स्पोक अबाउट डार्ट राइट, आप ऐसे बच्चे जैसे एक्साइटेड हो जाते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है राइट। आई चेंज आपका रिएक्शन जो जाता है डार्ट 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 राइट लाइक या दैट्स So, नाइस यही चीज है, अगर ये आपको लग गई ना, या आपकी सारी जिंदगी इसमें करेक्ट निकल सकती है। करेक्ट 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 और आपको पता है कि आप सही हो, मतलब इससे आप दूर नहीं जाना, बस यही, इसी को पकड़ के चलना है। या एट वन पॉइंट आई थिंक यू सेड कि मेरे को रात में भी उठा के बोलेगा ना कोड करने तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा डार्ट को हाँ, लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस नाइस। क्या बोलते हो लाइक आर यू डिलीट सीन ऑफ करे या फिर कैसा हाँ बिल्कुल, है ना परफेक्ट। है ना? वी कैन, बट बहुत वी मजा आया कैन, कुमार से लाइक एंडिंग हाँ नोट्स लाइक बहुत मजा आया। आई थिंक लाइक दैट कॉन्वर्सेशन वी हैड टुडे इज लाइक ब्रांच्ड आउट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द डे वी मेट राइट, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, मतलब वी लाइक वेंट इनटू ईच थिंग डिटेल राइट। नहीं, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मजा आया ना? यू हैड फन राइट, यू आर नॉट बोर्ड है ना? ग्रेट टाइम। Yeah, then my job is validated. Like I have like got all your मतलब मेरे को ये information चाहिए था personally. I was doing this for a very selfish reason and for people who are watching this कि you know you can pick like a lot of things from this conversation right. अभी जैसे आप सोचो ठीक है, जब आप बात कर रहे थे you have built आपका एक mindset है right, एक thought process है, there is like a certain way to do business. अब कोई और देख रहा है जिसने स्टार्ट नहीं किया, उसके लिए ये टाइम जो कोलैप्स होगा ना एक लेवल पे हाँ, अपने एक अमेजिंग घंटे होगा। 40 मिनट में अगर 8 लोग भी देखते हैं, मैं तो कहता हूँ सिर्फ 10 लोग देखते हैं ठीक है, हाँ बस और वो बस, फुल कंटेंट सर्विस हो प्रोवाइड, गया। हाँ अपना हो गया राइट, वी हैव फुल डन अ गुड सर्विस हो जॉब। गया, उसकी यस लाइफ यस यस बदल जाएगी। या दिस सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर राइट, दिस बस पॉड बस, परफेक्ट एकदम। यस 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 डन। थैंक यू कुमार सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच बॉस, आई हैड अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके कुमार सर, बाय बाय। बाय।